اس کی نیند، اس کا سکون سب کچھ کھو چکا تھا۔ وہ جب سے گھر آئی تھی اس کی نظروں کے حصار میں قید تھی۔ تراب کی نظریں اس کے لیے ایک امتحان بنی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے پکار نے اسے جیسے قید کر لیا تھا۔ وہ کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کروٹ پر کروٹ لیتی سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جیسے نیند بھی آج اس سے خفا ہو گئی تھی۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ تراب اس کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ کچھ اور سوچتی کہ وہ کچھ اور سوچ پاتی۔ تراب کی چادر اس نے اب تک خود پر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ اس کی خوشبو کو محسوس کر رہی تھی، اس کی چادر میں، جیسے وہ اس کے لمس سے آشنا ہو رہی تھی۔ وہ پوری طرح سے اس کی ہر سوچ پر سوار ہو چکا تھا۔ وہ نہ تو کچھ اور سوچ پا رہی تھی اور نہ ہی کچھ سمجھ پا رہا تھا۔ اس نے کتاب اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کی تو جیسے ہر وقت میں اسے تراب کی تصویر نظر آنے لگی۔ اس نے فوراً کتاب بند کر دی اور بیڈ پر آ کر ایک بار پھر سے کروٹیں بدلنے لگی۔ آج کی رات اس پر بہت بھاری تھی۔ نہ تو یہ سیاہ رات ختم ہو رہی تھی اور نہ ہی تراب اس کی سوچ اس کے ذہن سے نکل رہی تھی۔ وہ سیدھا ایئرپورٹ آیا تھا کیونکہ عالم نے اسے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ مصروف ہو، لیکن پھر بھی وہ کوشش کرے گا۔ وہ عالم کی مدد کے لیے یہاں آ گیا تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا روحان یا پھر واصف شاہ یہاں آنے سے یا کسی سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ سے مطلب رکھنے والا شخص تھا۔ ہاں، لیکن واصف شاہ اس بار جس مقصد کے لیے یہاں آنے والے تھے وہ اس کے مطلب کا تھا۔ وہ پاکیزہ بیگم سے معافی مانگنے کی خاطر یہاں پر آ رہے تھے۔ ان سے معافی مانگنے کے بعد وہ تراب کا سنیہا کے لیے رشتہ مانگنے والے تھے۔ وہ اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ اپنی کی گئی غلطیوں کی معافی مانگنا چاہتے تھے۔ اپنی کم اعتباری کی وجہ سے انہوں نے کیا کھویا ہے اس کا انہیں اچھے سے احساس تھا۔ وہ آج بھی پچھتا رہے تھے۔ حقیقت یہی تھی کہ تراب کو سنیہا کے علاوہ اور کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ سنیہا کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ سنیہا کو اپنے تمام تر جذبات کا مالک سمجھتا تھا۔ اسے اپنی زندگی میں سنیہا کا ساتھ چاہیے تھا۔ اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ سنیہا کا ساتھ پانے کے لیے اگر اسے کسی کے قتل بھی کرنے کو کہا جاتا تو وہ پیچھے نہ ہٹتا۔ اس کی محبت کو پانے کے لیے وہ ہر حد پار کر جاتا۔ وہ اپنے علاوہ کسی اور کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ایسا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو مرتے دیکھا تھا، اسے تڑپ تڑپ کے آخری سانسیں لیتے دیکھا تھا۔ وہ چھوٹا سا بچہ تھا، اپنی ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا، یہاں تک کہ اپنی ماں کے قاتل کے خلاف آواز تک نہیں اٹھا سکا تھا۔ اس نے حقیقت بیان کرنے کی کوشش کی تو اسے ہاسٹل بھیج دیا گیا۔ اسے اپنی ماں کے حق میں بولنے تک نہ دیا گیا تھا۔ بچے کی گواہی کو مانا ہی نہیں جاتا تھا، ورنہ شاید وہ اپنی ماں کے قاتل اپنے ہی باپ حیدر شاہ کو اس کے انجام تک ضرور پہنچاتا۔ اپنے باپ کی خود غرضی کی وجہ سے وہ سب سے کٹ گیا تھا۔ اس نے سب سے بات کرنا چھوڑ دی۔ وہ خود تک محدود رہنے لگا تھا۔ اسے ہر شخص سے نفرت ہو گئی تھی۔ تب اس کی زندگی میں سنیہا آئی تھی۔ وہ اپنے اور سنیہا کے رشتے کو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا محبت کیا ہے، لیکن اس چھوٹی سی عمر میں وہ محبت کر بیٹھا تھا۔ اسے سنیہا کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا تاکہ وہ اپنے ذہن سے اس حقیقت کو جھٹلا دے جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ وہ سب کچھ بھول گیا۔ وہ نارمل ہونے لگا تھا جب سنیہا کو اس سے دور کر دیا گیا۔ پاکیزہ اور واصف کی طلاق ہو گئی۔ پاکیزہ بیگم کیس جیت گئی اور بچوں کی کسٹڈی ہمیشہ کے لیے پاکیزہ بیگم کو دے دی گئی۔ اس کی محبت اس سے دور ہو گئی۔ وہ پھر تنہا ہو گیا، بس پھر اسے اندھیروں میں چلا گیا، لیکن اسے بلا نہیں پایا۔ اسے بلانا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ اس کی سانسوں میں بسنے لگی تھی۔ گزرتے ہر لمحے کے ساتھ وہ اس کا جنون بنتی جا رہی تھی۔ وہ کچھ بھی بھولا نہیں تھا۔ سنیہا کے ساتھ جڑا اپنا رشتہ وہ اچھے سے پہچانتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سنیہا بھی اس رشتے کو پہچانے۔ وہ اکثر اسے ملنے جاتا۔ شروع میں وہ اسے کوئی جن سمجھتی تھی۔ وہ اس سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتی تھی۔ اس کا خوف اسے مزہ دیتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ وہ اسے خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اسے پانا چاہتا تھا، لیکن اسے پانا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے چاچو کی ضرورت تھی۔ اس نے فون کیا تھا انہیں کہ کہا تھا اپنی بیٹی مجھے دے دیں ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا، مجھے بچا لیں چاچو، مجھے اگر سنیہا نہ ملی تو میں خودکشی کر کے مر جاؤں گا۔ اس کے انداز میں جو جنون تھا اسے محسوس کر کے واصف شاہ نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے یہاں آئے تھے روحان کے ساتھ۔ یہ روحان کی بھی ضد تھی، وہ بھی پاکستان سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اپنے گرے ہوئے الفاظ پر وہ ان دونوں کو لے کر گھر آ گیا تھا۔ سب گھر والے یہ سوچ کر پریشان تھے کہ روحان کو زندہ دیکھ کر دانین کیا ری ایکشن دے گی۔ ابھی تو سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، ہوا نہیں۔ ابھی تو ایک بھروسے کی دیوار قائم ہو رہی تھی۔ دانین کو جب یہ پتہ چلے گا کہ جس گناہ کی سزا وہ 4 ماہ تک کاٹتی رہی، وہ جو کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ سب گھر والے جہاں روحان کی واپسی پر خوش تھے، اسے زندہ دیکھ کر جیسے حویلی میں عید کا سما تھا، وہاں دانین کے ری ایکشن کا سوچ کر سب ہی پریشان تھے سوائے صنم کے۔ اسے بہت دنوں بعد اسے سکون ملا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو ہادی سو رہا تھا۔ ضیاء صبح ہوتے ہی کام پر نکل گیا تھا۔ سکندر صاحب کو جب یہ پتہ چلا کہ بریرہ جیل میں نہیں ہے بلکہ کہیں اور ہے، انہوں نے ضیاء کو چاہا سا تنگ کر کے رکھا تھا۔ وہ بار بار اسے یہی بات کہہ رہے تھے کہ بریرہ تمہاری بیوی ہے، تمہیں اسے گھر واپس لانا چاہیے، اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے، لیکن ضیاء کو ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بالکل خاموش لاپرواہ اپنے کام میں مگن تھا، لیکن پازیب جانتے تھے کہ وہ اتنا لاپرواہ نہیں ہے۔ وہ یقیناً بریرہ کے بارے میں معلوم کر رہا ہے۔ کل رات اس نے بریرہ کے بارے میں ساری حقیقت بتائی تھی اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ ہادی اس کا نہیں بلکہ اس کے بے حد عزیز دوست کا بیٹا ہے۔ یہ سب جان کر وہ ہادی سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگی تھی۔
वो जानती थी वो मासूम सा बच्चा नफरतों के नहीं बल्कि मोहब्बतों के लायक है। बरेरा कैसे इस मासूम की जान लेने की कोशिश कर सकती है, वो सिर्फ सोच ही सकती थी। हादी के सर पर हाथ फेर कर वो ज़ियार के कपड़े बेड से उठाकर धोने के लिए डालने लगी। जब ज़ियार की सफ़ेद शर्ट खून से लथपथ इसके हाथ में आई, इसकी शर्ट की हालत देखकर बेसाख्ता इसकी चीख बुलंद हुई थी। वो शर्ट फेंक कर बाहर की जानिब जाने लगी। जब खून बचने लगा, इसके हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। ऐसी हरकत भला कौन कर सकता था? ये शर्ट तो आज सुबह ही वो उतार कर गया था। इसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। अनजान नंबर देखकर इसका दिल मजीद घबराने लगा। इसने कॉल रिसीव करते हुए फ़ोन कान से लगाया था। हेलो, इसकी आवाज़ में कमकमाहट बाजियाँ थी, जिसे महसूस करके दूसरी तरफ से कहका लगाया गया। तोहफा कैसा लगा सोतन? तुम तो सिर्फ ज़ियार की शर्ट देखकर ही कमकमाने लगी। ज़रा सोचो, अगर ज़ियार शाह सच में तुम्हें ऐसी हालत में मिले तो तुम क्या करोगी? अल्लाह ना करे बकवास बंद करो बरेरा। वो लहजे में इसे पहचान गई थी। इस लहजे की तरफ को महसूस करके इसने फिर से कहका लगाया। वाह, तुम्हारी तो जुबान भी खुल गई है। अच्छा हुआ तुमने मुझे पहचान लिया। मैं भी ऐसी ही मोहब्बत करती हूँ इससे, लेकिन इसने कभी मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की। क्या नहीं किया मैंने इसके लिए? इसके ख़ानदान की खिदमत की, नंबरदार बहू बनने के ड्रामे किए, झूठी मोहब्बतों के दिखावे किए। जिस बच्चे को मैं दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी, इसके लिए लाई, इसे जन्म दिया, अपना आप बर्बाद किया। लेकिन नहीं, वो मेरे लिए बस ख़ानदान को छोड़कर मेरे पास मेरे लिए लेकिन नहीं, वो मेरे लिए बस ख़ानदान को छोड़कर मेरे लिए जाता है। क्या गलत किया था मैंने आगे से जायदाद मांगने के लिए कहा था? वो बेटा है इस ख़ानदान का, कम से कम इसके हिस्से की जायदाद इसके नाम पर ही देते हैं वो लोग। सिर्फ वो चाहिए था, लेकिन इसे इसका सारा ख़ानदान चाहिए। मैं पूछती हूँ क्या देता है इसका ख़ानदान सिवाय टेंशन के? सिर्फ और सिर्फ हादी अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहती थी। सिर्फ इसे ये कह दिया कि इसे ये किसी यतीम खाने में छोड़ आए तो मैं बुरी हो गई। मैं इसके लिए सब कुछ छोड़ देने को तैयार थी। वो मेरे लिए सिर्फ इस नाजायज़ हादी और अपने ख़ानदान को नहीं छोड़ सकता। पता नहीं कौन सी दोस्ती का बुखार चढ़ा है इसे, जो दोस्त के बच्चे को पालने लग गया। मैंने बहुत मोहब्बत निभाने की कोशिश की सोते, लेकिन इसने क्या किया? मोहब्बत की तुमसे, रिश्ता जोड़ा तुमसे, बच्चा भी पैदा कर रहा है तुमसे। मैं कहाँ गई? प्रेरा कहाँ गई सोतन, जो दीवानों की तरह इसे मोहब्बत करती है, पागलों की तरह इस पर मरती है? क्या मोहब्बत करने वालों के साथ ऐसा किया जाता है सोतन? मेरे हिस्से की वो मोहब्बत वो तुम्हें दे रहा है, तुम मानो या ना मानो। नाइंसाफ़ी तो हुई है मेरे साथ। इसकी सज़ा इसे मैं देने वाली हूँ। अभी तो सिर्फ शर्ट देखी है, अगर तुम इसके करीब गई तो इसकी लाश भी देखोगी। हाँ सोतन, जो मेरा नहीं वो तुम्हारा भी नहीं। अब से तुम्हें भी वही मिलेगा जो मेरे हिस्से में आएगा। अब से अगर तुम ज़ियार के करीब गई तो मैं ज़ियार को हमेशा के लिए तुमसे दूर कर दूंगी। तुम दोनों की कुर्बतों का सोचकर मैं क्यों तड़पूं? जो तकलीफ में से होंगी वो भी सहेगा, और तुम भी। इसका फ़ोन कॉल से ज़ियार को अनजान ही रखना, क्योंकि इसे पता चल गया कि इसकी जान को खतरा होगा। तुम फासला बनाओ, मुझे सुकून आ जाएगा, और मुझे सुकून मिलेगा तो तुम भी सुकून में रहोगी सोतन। वो कहकर लगाती फ़ोन बंद कर चुकी थी, जबकि फासिब खामोशी से सुनती यकीन कर चली थी कि परेरा पूरी तरह से पागल हो चुकी है। वो नैन का हाथ हमें घर में दाखिल हुआ, जबकि इसके चेहरे पर फैली सुर्खी आलम को बार बार कभी इसके गाल तो कभी इसके लबों को झुकने पर मजबूर कर देती थी। इसकी बेबाकियों पर वह से घूर ही सकती थी। वह भी सिर्फ इतनी सी जितनी देर वो इसके चेहरे पर झुकता, इसके बाद तो इसकी बेताबियाँ फिर से मोहब्बत की दास्तानें सुनाने लगती थी। सब लोगों को बाहर हाल में देख वो इसका हाथ हमें वहीं अंदर दाखिल हुआ था। दानेन को देखकर जैसे सारे ही साख्त रह गए थे। दानेन में इन्हें खामोश देखकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती आलम के पीछे आई थी। सोफे पर बैठे वासफ चाचू को देखकर आलम ने सिर्फ एक नज़र रूहान को देखा था। दानेन के हाथ पर इसकी हाथ के करीब सख्त हो गई। वो खामोशी से इन सबको देख रही थी। इसे कुछ अजीब लगा कि अब नज़र सोफे पर बैठे इस साख्त व जावत शख्स पर पड़ी थी। आलम के हाथ पर इसके हाथ की ग्रिप ढीली हो गई थी, जिसे महसूस करके आलम ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद की थी। दानेन पुत्र, ये वासफ शाह है, मेरा बेटा, और ये रोहान मेरा पोता, जिसकी वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। दादा जान के लहजे में शर्मिंदगी थी। दानेन को अपनी स्मातों पर यकीन न आया। वो हैरान कैसे आलम को देख रही थी, जहाँ वो बिल्कुल खामोश। दानेन का नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथ में थामे खड़ा था। रोहान, जिद मत करो, तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रहे? डॉक्टर ने तुम्हें फिलहाल कहीं भी जाने से मना किया है, तुम्हें टेंशन से दूर रखने के लिए कहा है। फिलहाल तुम्हें हम शाह हवेली जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। वासफ शाह से समझाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि रोहान की एक ही जिद थी कि इसे इसकी माँ से मिलना है। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरे बाबा के पास जाना है, अपनी माँ के पास जाना है। इनसे माफ़ी मांगनी है, मैंने इनका दिल दुखाया है। रोहान, तुम्हारा बाप यहाँ है, वासफ शाह तुम्हारा बाप है। जिस शख्स को तुम अपना बाप समझ रहे हो वो तुम्हारा बाप नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश करो। दादा जान इसकी मेंटल कंडीशन को समझे बगैर बोले थे। वासफ शाह ने खामोश रहने के लिए कहा तो वो एक बार इसकी कंडीशन को समझते हुए ना सिर्फ खामोश हुए गए थे, बल्कि कमरे से ही निकल गए। इन्हें सफदर शाह से सालों से नफरत थी, जो इनसे इनके पोते पोती को छीन कर ले गया था। और आज इनका पोता कितने धरले से कह रहा था कि सफदर शाह इसका बाप है। आप सब लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करें। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दें, मुझे मेरे बाबा के पास जाना है। यहाँ रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, प्लीज़ समझने की कोशिश करें। वो इनके सामने हाथ जोड़ता इनकी मिन्नतें कर रहा था। वासफ शाह के इशारे पर तुराब ने इसे बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया, जो वक्ती तौर पर इसके सुकून के लिए बेहद अहम था। इसकी जान को खतरा था। वो रोहान को यहाँ होने का किसी को बताना नहीं चाहता था। वो चुपचाप कमरे में आ गई थी। आलम भी थोड़ी देर बाद इसके पास कमरे में आया तो वो बेड पर खामोशी से बैठी शायद इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी। आलम खामोशी से कदम उठाता इसके साथ ही बेड पर आ बैठा, लेकिन इससे पहले कि वो बेड पर बैठा वो इसके करीब से उठकर जाने लगी। नैन, प्लीज़ मेरी बात सुनो। वो झटके से इसका हाथ थामता इसे
अपनी जानिब खींच चुका था। वह इसके सीने पर आ गिरी। आलम का चेहरा इसके चेहरे के बेहद करीब था। आलम प्लीज़ प्लीज़ इस वक्त कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, बस और अब नहीं। मैं अकेले रहना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दे, प्लीज़ मुझे थोड़ा वक्त दे, सिर्फ अपने साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। इसकी आवाज़ भारी थी, यकीन यहाँ आने के पहले वो सिर्फ रोती रही थी। एक बार मेरी बात सुन लो, सिर्फ एक बार। वो जैसे मिन्नतें कर रहा था। इसके बाद मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, एक बार मुझे अपनी तरफ से सारी बात क्लियर करने दो। इसका चेहरा अपने हाथों में थामे वो सुनने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन इस वक्त नैन इसकी कोई बात सुनना नहीं चाहती थी। आलम ने आहिस्ता से अपने करीब करते हुए बेड पर इसे अपने साथ बिठाकर इतने करीब कर लिया कि वो चाहकर भी इसके करीब से उठ नहीं पाई थी। नैन का रात तुमने होटल में मुझे बताया था ना कि तुम्हें कभी किसी ने प्यार नहीं मिला। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे किसी ने मोहब्बतें नहीं दी या किसी ने मुझे प्यार नहीं किया। ये नाइंसाफी है इन सब रिश्तों के साथ जिन्होंने मुझे तवज्जो दी थी। मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत तवज्जो मिली। मैं घर का पहला बच्चा था, हर कोई मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और मोहब्बतों के साथ पहला बच्चा होने की वजह से मेरे सर पर बहुत सारी जिम्मेदारी भी थी, जो मेरे साथ यहाँ रहते हुए तुम भी समझ रही हो। जानती हो नैन, जब आहिस्ता आहिस्ता मैं होश संभाला तो मैंने सबके मुंह से यही सुना कि आलम है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आलम सब ठीक कर देगा, वो संभाल सकता है। बस मैं सब कुछ ठीक करने लगा, सब कुछ संभालने की कोशिश करने लगा। नैन मैं सबकी उम्मीदों पर पूरा उतरना चाहता था, मैं किसी को नाउम्मीद नहीं करना चाहता था और इस चीज़ ने मेरे अंदर से सही गलत की पहचान खत्म कर दी। मैं कोशिश करता था कि किसी को भी मुझसे कोई मसला ना हो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं इसकी हेल्प करूं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अनम सनम तुराब रोहान, यहाँ तक कि बाबा चाचू और बेशक दादा जान ही क्यों ना हो। मैं नहीं चाहता था कि वो लोग किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हों। मैं इनके सारे मसले हल कर देना चाहता था। मुझसे मेरी फैमिली की तकलीफ देखी नहीं जाती थी। जब रोहान के साथ ये हादसा पेश आया तो डॉक्टर ने कहा कि रोहान का बचना नामुमकिन है, वो दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 4 दिन का मेहमान है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता था, किसी को दर्द देना नहीं चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि रोहान की मौत हमारे घर को तोड़ कर रख देगी। मैं किसी को झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था, बस इसीलिए मैंने कह दिया कि वो नहीं रहा और इसकी लाश को मैं अपने आबाई इलाके में दफना दिया है। सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा खफा हो गए। घर में एक करहम टूट पड़ा, एक क़यामत छा गई। अपने घर वालों को तकलीफ में देखकर मैं भी तकलीफ में था। दादा जान बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। इनका कहना था कि इन्हें रोहान की मौत का बदला लेना है। हम रोहान को इस हाल में पहुंचाने वाले को इस तरह से आज़ाद घूमने नहीं दे सकते। हमें अपने खानदान के खून का हिसाब चाहिए। रोहान के बचने की कोई उम्मीद थी ही नहीं। नैन वो जिंदा था, लेकिन मौत के इस हद तक करीब था कि इसे जिंदा इंसानों में शुमार करना एक बेवकूफ़ी थी। हमें यकीन हो गया कि रोहान बच नहीं सकता और रोहान को मारने वाला रहील था और रहील का साथ दे रही थी दानी। हम रोहान की मौत को ज़ाया नहीं जाने दे सकते थे। रोहान की मौत का बदला तो हमें भी लेना था। हमने भी चाहते थे कि वो लड़की कौन है, हम भी वो जानना चाहते थे कि वो लड़की कौन है जो रोहान की मौत की वजह बन रही है। रोहान ने इस हादसे से कुछ दिन पहले मुझे इस लड़की की प्रेगनेंसी रिपोर्ट लाकर दी, जिसमें ये बात साबित हो रही थी कि वो लड़की जिसका नाम दानी है वो रोहान के बच्चे की माँ बनने वाली है। और फिर मैंने इस लड़की के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि दानी नाम की लड़की को बरेरा ने इसके पीछे लगा कर रखा था। बरेरा के फ़ोन से मुझे तुम्हारा नंबर मिला। बरेरा के पास तुम्हारा नंबर कहाँ से आया ये सब कुछ मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि तुम वो लड़की हो जो रोहान की मौत की वजह बन रही हो। अपने घर वालों को इस बुरे वक्त से गुजरते देखकर इस तकलीफ सहना मेरी बर्दाश्त से बाहर था। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा इस दिन ये दिल तुम पर हार बैठा था। मैं तुमसे शादी करने का फैसला कर चुका था। वो खोए खोए अंदाज में कहता बेसाख्ता मुस्कुराया। इसके अंदाज में दर्द तकलीफ से ज़्यादा नैन के लिए मोहब्बत नुमायां थी। वह बहुत मोहब्बत से इसके लबों पर झुका, इसके लबों को चूमते हुए इसकी मज़ाहमत की परवाह किए बगैर इसे यूं ही खुद में कैद किए बोलता रहा। लेकिन जब रोहान के केस के सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ निकले तो मेरे दिमाग ने मुझे तुमसे मोहब्बत करने की इजाज़त नहीं दी। नैन ये गुस्सा या नफरत सिर्फ रोहान की वजह से नहीं थी, ये सब कुछ मेरी बदतरीन जहनी कैफियत थी कि मैं अपने दिल की ये बात समझा नहीं पा रहा था कि जिस लड़की से मैं मोहब्बत कर बैठा हूँ वही लड़की रोहान की जान लेने वाली है। तुम्हें जो सज़ा मैं देता था वो रोहान की वजह से नहीं बल्कि अपनी जहनी कैफियत की वजह से देता था। मैं इस बात को कबूल ही नहीं कर पाया था कि मेरी मोहब्बत इतनी गिरी हुई हो सकती है। मैं बार बार तुम्हारी तरफ मुतवज्जो हो जाता, मैं तुम्हें सजाए मौत दिलवाना चाहता था, लेकिन मेरा दिल वहाँ पर भी नहीं माना। तुम्हारे सामने निकाह की शर्त रखकर मुझे लगा कि शायद अब मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन तुमने निकाह कर लिया। तुम हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहने लगी। ये मेरे दादा की नहीं, ये मेरी नहीं, दादा जान की शर्त थी कि रोहान के कत्ल को हमेशा इस घर में रहकर इसकी मौत की सज़ा दी जाए, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा कि वो सज़ा मुझे दे रहे हैं। मेरी ज़िंदगी मेरी आंखों के सामने बर्बाद हो रही थी और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैं तो घर का बड़ा बेटा हूँ ना, सब कुछ ठीक करना मेरा फ़र्ज़ है। मैंने तुमसे शादी कर ली, तुम्हें घर ले आया, तुम्हें तरह तरह से तकलीफ देने लगा, लेकिन तुम्हारी हर तकलीफ के साथ मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी ये कोई नहीं सोच रहा था। तुम्हारे घर में आने के बाद मैं हर दिन दुआ मांगता था कि सब कुछ ठीक हो जाए, मेरी नैन बेगुनाह हो। मैं हर मुमकिन तरीके से पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर चीज़ तुम्हारे खिलाफ आ रही थी। अबॉर्शन की रिपोर्ट पर तुम्हारा नाम, रोहान की लाई गई रिपोर्ट गायब हो चुकी थी। रोहान के दोस्त उमर ने तुम्हारा नाम लिया, तुम्हारी सहेली अक्सा ने तुम्हारा नाम लिया, बरेरा तुम्हारा नाम ले रही थी। तो नैन तुम बताओ मुझे क्या करता मैं? मेरी हर मुमकिन कोशिश के बावजूद तुम्हें बेगुनाह साबित करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। मैं बदतरीन जहनी दबाव का शिकार था। एक तरफ मेरी फैमिली थी, दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत थी। मेरा भाई मौत के दरवाजे पर खड़ा था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं भी इंसान ही हूं। मुझे भी चीज़ें समझाने में वक्त लगता है। मैं हर चीज़ परफेक्ट नहीं कर सकता। तुम्हें दर्द देकर, तुम्हें तकलीफ देकर सुकून में मैं भी नहीं रहा। तुम्हारी हर तकलीफ को मैंने सहा है, तुम्हारा हर दर्द मैंने महसूस किया है।
मेरे थप्पड़ों के निशान तो शायद तुम्हारे चेहरे से हमेशा के लिए मिट चुके हैं, लेकिन तुम्हारे दर्द देने के बाद जो जख्म मैंने खुद को दिए, इनके निशान सारी जिंदगी नहीं जाएंगे और ना ही मैं जाने दूंगा। आलम ने इसे खुद में छुपाते हुए कहा तो वह हैरानगी से इसे सुने जा रही थी। इसकी बात पर इसे देखने लगी। आलम इसके फक्रमंदाना अंदाज पर मुस्कुरा दिया था। कहाँ है जख्म? आपने खुद को तकलीफ क्यों पहुंचाई? इसके लहजे की नाराजगी इसकी जख्मों की बात पर कमजोर होने लगी थी। वह इसका सीना टटोलने लगी। आलम ने इसके हाथ कैद कर लिए थे। फिर बढ़ जाएंगे नैन, मेरा हर जख्म बच जाएगा, बस तुम मुझे माफ कर दो, मेरा हर दर्द कम हो जाएगा। जानता हूँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मांग रहा हूँ। माफ़ी हर बार नहीं मिलती, मेरी कोई ना कोई गलती बार बार तुम्हारे सामने आ जाती है। मैं तुमसे माफ़ी मांगने लगता हूँ। मैं तुम्हें इतनी खुशियाँ नहीं दे पाता जितनी तकलीफ़ें देता हूँ। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी जैसी लड़की के काबिल नहीं हूँ। मैं एक नाकाम इंसान हूँ नैन। मैं सबको खुश करने की कोशिश में अपना सब कुछ बर्बाद कर लेता हूँ। सब मुझे परफेक्ट समझते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी परफेक्ट बनने की कोशिश करता रहता हूँ ताकि किसी की उम्मीद ना टूटे। वो बोले जा रहा था जबकि नैन इसके जिस्म को निगाहों में लिए इसके जख्म तलाश कर रही थी। इसके नाजुक हाथ इसके हाथों में कैद थे। वो बोले जा रहा था, लेकिन इस बार मैं तुमसे आखिरी बार माफ़ी मांग रहा हूँ। सबके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं किया। आज पहली बार अपने लिए करने जा रहा हूँ। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी वीरान हो जाएगी। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। अगर तुम्हें खोने दिया तो शायद मौत भी मुझ जैसे इंसान को मुंह न लगाए। अगर आज तुम मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा। आलम, इसके अल्फाज में शिद्दत थी जिसे महसूस करके दानीन कांप उठी। मुझे आखिरी बार माफ़ी चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ इसके बाद मुझसे कोई गलती नहीं होगी। मैं वादा करता हूँ कि इसके बाद मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। बस आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो। इसके दोनों हाथ हमें वो बेहद आज जिससे इससे माफ़ी मांग रहा था। आलम को लगा जैसे अगर इसने माफ़ ना किया तो इसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो समझ सकता था इस वक्त दानिन की सोच क्या थी। इतने महीनों से जो तकलीफ वो सह रही थी, जिस चीज़ की वो सज़ा काट रही थी, इसका कोई वजूद ही नहीं था। जिस शख्स की मौत की सज़ा इसे दी जा रही थी वो शख्स तो जिंदा था, तो फिर इसे किस लिए इतनी तकलीफ दी जा रही थी? पहले तो दानिन ये सोचकर सब कुछ नज़रअंदाज कर गई थी कि इन लोगों का बेटा मरा है, इस शख्स का भाई मरा है, लेकिन अब वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कैसे करती? आलम ने सच में इसे इम्तिहान में डाल दिया था। आलम ने जब इसे सारी हकीकत बताई तो ये भी बता दिया था कि रोहान जिंदा है, जो वो हर चीज़ के लिए इसे दिल से माफ़ कर सकती है, तो शायद वो इसकी गलती भी माफ़ कर देती। लेकिन सारे इंकशाफात यूं वक्फे से क्यों हो रहे थे? इसे वक्फे से मौत क्यों दी जा रही थी? जब वो सब कुछ बुलाकर आगे बढ़ने का सोच रही थी तभी एक और कड़वा सच इसके सामने आ गया था, और अब वो सब लोग एक बार फिर से माफ़ी मांग रहे थे। इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो आलम को इसकी गलती के लिए माफ़ नहीं करना चाहती थी। ये गलती आलम ने अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर की थी। वह इसे छोड़कर अपने घर जाकर अपने चाचा पर बोझ नहीं बन सकती थी। दुनिया से मुकाबला करने की हिम्मत इसमें नहीं थी, और अब आलम से अलग होने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। आलम का यह कसूर इतना बड़ा तो नहीं था कि वो इसे सारी जिंदगी जुदाई की सजा देती, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था कि वो इतनी आसानी से इसे माफ़ कर देती। वो आलम का हाथ अपने वजूद से पीछे करती आहिस्ता से इसके करीब से उठ गई थी। इसके सीने पर सिगरेट के जलने के निशान वो आज सुबह ही देख चुकी थी, और फिर ऐसे ही कई निशान इसके बाजू पर भी थे। इस वक्त वो सो रहा था, वरना वह जरूर पूछती। वो जानती थी इसे बेपनाह निशान इसके जिस्म पर मौजूद होंगे, यही वो निशान है जो वो इसे तकलीफ देने के बाद अपने जिस्म पर लगाता था। दानिन, मेरी बात सुनो। आलम इसका हाथ थामते हुए बोला, जब दानिन अपना हाथ इसके हाथ से छुड़वाकर वाशरूम में बंद हो गई। इसकी खामोशी ने आलम को तड़पा डाला था। आलम ने कितनी देर दरवाज़ा खटखटाया था। इसके बाद इससे बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब तक वो कमरे से बाहर निकल गया तब तक दानिन बाहर नहीं आई थी। यह मुमकिन नहीं था कि आलम हर बार गलती करे और दानिन इसे हर बार माफ़ कर दे। इसे खुशी थी कि इनका रोहान जिंदा है, जिससे वह सब लोग बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन इस बात की तकलीफ भी थी कि इसे इस शख्स के लिए सज़ा दी गई, और हर बात से ज़्यादा तकलीफ इस बात की थी कि आलम ने इसे हकीकत पहले क्यों नहीं बताई। यकीनन वह सब सच जानकर इसे पूरे दिल से माफ़ कर देती। वो पुरानी किसी बात को लेकर इसे नाराज़ नहीं थी। वो नाराज़ थी इसलिए क्योंकि आलम ने इसे पूरी बात नहीं बताई थी। वो पूरी तरह इस पर एतबार नहीं कर सका था, या शायद आलम ने इतनी अहम बात बताना इसे ज़रूरी ही नहीं समझा था। बाबा, क्या मैं कमरे में आ जाऊँ? उसने दरवाजे पर खड़ी इजाज़त मांग रही थी। सफदर शाह ने मुस्कुराकर इसे अंदर आने के लिए कहा और अपनी बाहें फैलाई। वो मुस्कुराते हुए इनके पास आई थी। मेरी जान यूनिवर्सिटी कब ज्वाइन कर रही है? वो बेहद मोहब्बत से पूछ रहे थे। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ज्वाइन कर लूँगी, वो नरमी से मुस्कुराती हुई बोली, तो सफदर ने हाँ में सर हिलाया था। देखो बेटा, अब तुमसे कुछ छुपा हुआ है नहीं। तुम तो राव हैदर शाह के बारे में सारी हकीकत जान चुकी हो। मैं तुमसे इस बारे में तफसील से बात करना चाहता हूँ। मेरा मतलब है तुम पर किसी किस्म की कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन वो लोग रिश्ता लेकर यहाँ पर आना चाहते हैं। वो अपने से शादी करना चाहते हैं, पूरे रस्म और रिवाज के साथ निकाह करना चाहते हैं, लेकिन मैंने इनको साफ कह दिया कि जहाँ मेरी बेटी की मर्जी होगी मैं वहीं पर इसकी शादी करूँगा। मेरी बच्ची के साथ किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में सोचो। मैं समझ सकता हूँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन बेटा आसान कुछ भी नहीं है। सांस लेने के लिए भी हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक तलाक याफ्ता लड़की की ज़िंदगी बहुत मुश्किलों से गुजरती है, खासकर ऐसे हालात में जहाँ रुखसती भी ना हुई हो। बेशक तुम्हारे साथ और आपका कोई तलक नहीं है, लेकिन निकाह का बंधन इतना आम बंधन नहीं कि इसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। मैं तुम्हें बस इतना ही कहूँगा कि जो भी फैसला करो सोच समझ कर करो। ये सारी ज़िंदगी का सवाल है। अगर तुम पाकीज़ा के साथ हुए हालात की वजह से ये सोच रही हो
तो तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसा मत सोचो, सबकी तकदीरें एक जैसी नहीं होती। नसीब लिखने वाली ज़ात वो है, वो अच्छा बुरा सब समझती है। अगर अपनी माँ का नसीब सोचकर तुम अपनी ज़िंदगी का फैसला कर रही हो तो हरगिज़ मत करना। मैंने तुराब शाह की नज़रों में तुम्हारे लिए सच्ची मोहब्बत देखी है। तुम एक बार इसकी मोहब्बत को महसूस करने की कोशिश करो, तुम्हें मायूसी नहीं होगी। वो साइड दराज से पेपर्स निकालते हुए इसके सामने करने लगे तो वह हैरानगी से इन कागजात को देख रही थी। ये तलाक के कागजात हैं। अगर तुम तुराब के साथ किसी किस्म का कोई तलक नहीं रखना चाहती तो बस इन कागजात पर साइन कर देना। मैं तुम्हारा जवाब समझ जाऊँगा और आगे का सारा मामला मैं खुद ही हल कर लूँगा। लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले सोच लेना, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि तुराब की ज़िंदगी का भी सवाल है। दो खानदानों में चलती सालों की दुश्मनी को ख़त्म करने का वाहिद रास्ता है। आगे तुम्हारी मर्जी। वो कागजात इसके हवाले करते, इसके सर पर हाथ फेरते आहिस्ता से इसके करीब से उठकर बाहर चले गए थे, जबकि स्नेहा इतनी देर परेशानी से इन पेपर्स को हाथ में थामे अजीब कश्मकश में गिरफ्तार थी। रूहान कहाँ है तुराब? वो कमरे में आया तो रूहान वहाँ पर नहीं था। बाहर निकलकर तुराब से पूछने लगा तो तुराब ने हैरानगी से इसे देखा था। अंदर कमरे में बेहोश पड़ा है, थोड़ी देर पहले मैंने इसे इंजेक्शन लगाया है। तुराब ने इसे बताया था। कोई नहीं है तुराब, कोई भी नहीं है कमरे में। रूहान कहाँ है? आलम परेशानी से पूछने लगा। तुराब भी परेशान हो चुका था। वो अपने पैरों पर नहीं चल सकता तो इसे कहाँ जा सकता है? मैंने खुद इसे इंजेक्शन लगाया, वो बेहोश हुआ था। मैं खुद इसे बेड पर लिटाकर कमरे से बाहर आ गया था। तुराब परेशानी से बताने लगा। रूहान का गायब होना कोई आम बात नहीं थी, इसकी जान को खतरा था। आलम ने सब मुलाजमों को बुलाकर पूछा और घर से बाहर निकलने लगा। जब आलम का फ़ोन बजने लगा, इसने देखा कोई अनजान नंबर से इसे कॉल कर रहा था। आलम ने फ़ोन उठा लिया और इसके शक के मुताबिक दूसरी तरफ अब ये खेल अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा था। रूहान कहाँ है? क्या चाहते हो तुम? इसने बिना अपना वक्त ज़ाया किए सवाल किया। वाह आलम सुल्तान शाह, समझदार हो। मेरे दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाओ, तुम्हें रूहान मिल जाएगा, लेकिन जिंदा मिलेगा इसकी गारंटी नहीं देता। फ़ोन बंद हो चुका था जबकि आलम अपने मोबाइल से आने वाली लोकेशन को देख रहा था। वहाँ खतरा हो सकता है आलम, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। तुराब ने कहा था। नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आओगे तुराब, मैं अकेला वहाँ जाऊँगा। इसने मुझे कहा है कि मैं अकेला हूँ। मैं नहीं चाहता कि रूहान को किसी भी किस्म का खतरा हो। मुझे अकेले ही वहाँ जाना होगा। अगर मुझे तुम्हारी आलम, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा वहाँ तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मुझे रूहान से कोई मतलब नहीं है और ना ही मैं इसके लिए अपने दिल में किसी किस्म के कोई जज्बात रखता हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। मैं तुम पर रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम पर किसी भी किस्म का कोई खतरा आए। मुझे अपने साथ ले चलो, वो जिद कर रहा था। तुराब, मैं मना कर रहा हूँ ना, तो तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? कह तो रहा हूँ कि अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं फ़ोन कर लूँगा। इसकी जिद देखते हुए वो गुस्से से बोला था। जब हैदर शाह हाल में दाखिल होते हुए आलम का अंदाज इन्हें बेहद नागवार गुजरा था। इन्हें तो यही लगता था कि आलम तुराब को हमेशा झुकाकर और दबाकर रखना चाहता है। आलम का अंदाज शुरू से हक जताने और हुक्म चलाने वाला था। उन्होंने तुराब को बहुत बार समझाने की कोशिश की कि तुम आलम के भाई हो, इसके मुलाजिम नहीं। इसकी हर बात मानने से बेहतर है कि तुराब अपने लिए आवाज़ उठाया करो। वो तुम्हें दबाकर रखना चाहता है। तुम भी इस खानदान के वारिस हो। आलम की हर बात मानना तुम पर फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन तुराब का हमेशा एक ही जवाब होता, आलम मेरा भाई ही नहीं, मेरा दोस्त भी है। इससे ज़्यादा और कोई मेरा भला चाह ही नहीं सकता। तो बेहतर है कि आप मेरे और आलम के मामले में मत बोला करें। तुराब कभी भी आलम के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करता था, चाहे बोलने वाला वो इसका बाप ही क्यों ना हो। आलम तुराब को इन्हें कुछ भी ना बताने का इशारा करता वहां से जाने ही लगा था कि अचानक इसके हाथ से गाड़ी की चाबी गिर गई। इससे पहले कि आलम इसे उठाता, तुराब ने झुककर इसकी चाबी को उठाकर आलम के हवाले किया था। आलम इनके करीब से गुजरता अभी दरवाजे तक नहीं पहुंचा था जब चाचू के अल्फाज इसके कानों में गूंजने लगे। यही तो वो करना चाहता है तुराब, वो तुम्हें झुकाना चाहता है। वो तुम्हें मुलाजमों की तरह ट्रीट करता है। वो तुम्हें कभी खुद से आगे नहीं निकलने देगा। इस खानदान का मिस्टर परफेक्ट आलम सुल्तान शाह है। तुराब हैदर शाह का तो कहीं नाम ही नहीं है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती? आलम के दिल में तुम्हारे लिए कोई मोहब्बत नहीं है। वो तुम्हारा हिस्सा भी हथिया लेगा। हैदर शाह की सोच इसे हैरान कर गई थी। आलम मेरा आपसे ज़्यादा हैर हुआ है हैदर शाह। अगर वो मुझे झुकाना भी चाहता है तो भी मैं खुशी से इसके सामने झुक जाऊंगा, क्योंकि इसके साथ मेरा एक नहीं बल्कि बहुत सारे रिश्ते हैं। और जहाँ तक बात है मुलाजमों की तरह ट्रीट करने वाली, तो माफ़ कीजिएगा, इसके हक जताना कहते हैं। वो हक जो बड़े भाई को अपने छोटे भाई पर होता है, एक उस्ताद का अपने शागिर्द पर होता है, एक दोस्त का अपने दोस्त पर होता है। खैर, आपको ये सारी बातें समझ में कभी भी नहीं आएंगी, क्योंकि आपने रिश्ते को हमेशा अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया है। आपकी नज़रों में हर रिश्ता मुनाफिक है, क्योंकि आपका अपना दिल मुनाफिक हो चुका है। आप खुद ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं बन पाए और अब आप मुझे भी अपनी तरह नाकाम कर देना चाहते हैं। आप मुझे आलम के खिलाफ करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। कोशिश भी मत कीजिएगा। इसके अल्फाज ने जैसे आलम के कदमों में एक बार फिर से जान डाल दी थी। वो खामोशी से वहीं से घर से बाहर निकल गया था। इसके लबों पर एक जानदार मुस्कुराहट थी। वो जानता था दुनिया इसका साथ छोड़ सकती है, लेकिन तुराब हैदर शाह कभी नहीं। हाँ, लेकिन आज से इसे चाचू की सोच पर अफसोस हुआ था। वो आज क्या अमेरिका रवाना होने वाले थे एक बिजनेस टूर के सिलसिले में। शायद इनके वापस आने तक आलम का ये दर्द कम हो जाए जो आज इनके लफ्ज़ों से इसे मिला था। क्या मुझे फ़ोन करना चाहिए? नहीं, मैं फ़ोन नहीं करूँगी। पता नहीं वो क्या मतलब निकालें। वो परेशानी से 3-4 बार फ़ोन उठाकर वापस रख चुकी थी, लेकिन फिर जब दिल की बेचैनी हद से सवार हो जाती तो एक बार फिर से
ہاتھ اپنے آپ ہی فون کی جانب بڑھنے لگتے. اس نے بہت ہمت کر کے اپنے موبائل پر نمبر ڈائل کیا. اس نمبر سے نہ جانے وہ کتنی بار اسے فون کر چکا تھا. اسے بس اتنا یاد تھا جب اس نے پہلی بار اس نمبر سے تراب کی کال وصول کی تھی اس نے فون بند کر دیا تھا. پھر اس کے بعد تراب نے بہت بار اسے اسی نمبر سے فون کرنے کی کوشش کی لیکن سنیہا نے کبھی بھی فون نہ اٹھایا تھا اور آج وہ خود اسے فون کرنے جا رہی تھی. اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا. موبائل پر موجود نازک سے ہاتھ بے تحاشا کانپ رہے تھے. نہیں میں فون نہیں کروں گی. نہ جانے وہ کیا مطلب نکالیں. مجھے فون نہیں کرنا چاہیے. وہ فون دوبارہ بیڈ پر رکھتی اپنے فیصلے پر قائم رہی. لیکن کب تک اسے اس مسئلے کا حل چاہیے تھا اور حل تب ہی نکل سکتا تھا جب وہ تراب سے بات کرتی. وہ یوں ہی پیپر سائن نہیں کر سکتی تھی. وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ بہت مشکل ہے اور زندگی میں آگے چل کر بے حد مشکل ہو جائے گی. اس مسئلے کا ایک ہی حل تھا کہ وہ تراب سے اس بارے میں بات کرے. وہ خاندانوں کی دشمنی کی وجہ نہیں بننا چاہتی تھی. دوسری طرف اس کا دل اسے بغاوت کرنے پر مجبور کر رہا تھا. تراب کو اپنی سوچوں سے دور کرنے کے باوجود بھی وہ اس کی سوچوں سے نکلا نہیں تھا. وہ اس کے لیے بے حد مشکل امتحان ثابت ہو رہا تھا. اس کی چادر اب بھی اس کے پاس پڑی تھی. اس نے ہمت کر کے فون اٹھایا اس یقین کے ساتھ کہ اس بار وہ ہمت ہار کر فون دوبارہ نہیں رکھے گی. اس نے تراب کا نمبر ملاتے ہوئے ہمت کر کے فون اپنے کان سے لگایا تھا. وہ عالم کو لے کر بے حد پریشان تھا. عالم اسے قسم دے کر کہا تھا کہ میرے پیچھے مت آنا. میری غیر موجودگی میں تم گھر پر ہی رہو گے. اگر میری بات تمہارے لیے اہمیت رکھتی ہے تو بس تم وہی کرو گے جو میں تمہیں کہنے کے لیے کہوں گا. عالم کی بات کا مان رکھتے ہوئے وہ بہت مشکل سے صبر سے اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جب اس کا فون بجنے لگا. اس نے بے حد بیزاری سے اپنا فون اٹھا کر نمبر دیکھا. اسے تو جیسے یقین ہی نہ آیا. اس نے حیرانگی سے 2-3 بار نمبر دوبارہ دیکھا لیکن وہ غلط نہیں تھا. اس کی شہزادی خود اسے فون کر رہی تھی. اس نے جلدی سے فون اٹھایا کہ کہیں فون کٹ ہی نہ جائے. ہے شہزادی کیا تم بات کر رہی ہو مجھ سے؟ اس کے لہجے کی بے یقینی سنیہا نے نوٹ کر لی تھی. اس کے ہتھیلوں پر پسینہ آنے لگا. جی وہ بس اتنا ہی بول پائی تھی. تراب کی جیسے خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے مجھے فون کیا ہے. اپنے لبوں سے میرا نام لو. مجھے یقین دلاؤ کہ تم ہی ہو. وہ آہستہ سے آنکھیں بند کرتا بیڈ پر بیٹھ گیا تھا جیسے اسے محسوس کر رہا ہو. بند آنکھوں سے اس کا حسین چہرہ دیکھ رہا ہو. میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. اس نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے. تو آپ نے اپنی آنکھیں کھولی تھی. قربان شہزادی خادم حاضر. کہاں آؤں؟ میں آدھے گھنٹے میں حویلی میں ملتا ہوں تم سے. وہ فیصلہ کرتے ہوئے بولا تھا. نہیں بالکل بھی نہیں. وہ پوری طرح سے گھبرا گئی تھی. اس کے انداز نے تو آپ کو مسکرانے پر مجبور کر دیا. تمہارے کمرے میں آ جاؤں؟ وہ جیسے اسے اجازت مانگ رہا تھا. نہیں پلیز نہیں. وہ بری طرح سے گھبرا رہی تھی. اچھا شہزادی گھبراؤ مت. ہم باغ میں ملتے ہیں. تم باغ میں آؤ میں وہاں پہنچتا ہوں. اس نے کوئی سوچتے ہوئے فیصلہ کیا تھا. نہیں میں وہاں پہ بھی نہیں آ سکتی. مجھے حویلی میں کوئی بھی اکیلے اس جانب جانے نہیں دے گا اور لالی کو میں اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتی. میں گھر میں کسی کو بھی اس بارے میں بتانا نہیں چاہتی. مجھے آپ سے مل کر کچھ باتیں کرنی ہیں. وہ سمجھاتے ہوئے بولی تھی. تو پھر بتاؤ نا کہاں ملنا ہے تم سے. میں حاضر ہو جاؤں گا. وہ پرسکون لہجے میں بولا. اس کے لیے تو شہزادی کا اشارہ ہی کافی تھا. بس ساری دنیا ایک طرف چھوڑ کر آ جاتا. میں 3 دن کے بعد یونیورسٹی جا رہی ہوں. وہیں پر ملوں گی آپ سے. وہ فیصلہ کرتے ہوئے بولی. 3 دن میں مر گیا تو تھوڑا سا تو رحم کرو اپنے عاشق پر. حسینہ اتنے ابھی ظالم نہیں ہوتی شہزادی. وہ جیسے اسے سمجھا رہا تھا. اس کے اس طرح سے کہنے پر سنیہا کے دل میں ہلچل سی پیدا ہوئی تھی. اللہ کا واسطہ ہے میرے سامنے یہ مرنے مارنے کی باتیں نہ کیا کریں. اس کے لہجے میں عجیب سی بے قراری تھی جسے محسوس کر کے تو آپ کو سکون ملا تھا. مجھے 3 دن کے بعد یونیورسٹی میں آپ سے ملوں گی. آپ پلیز وہاں آ جائیے گا. وہ منت بڑے لہجے میں بولی. تم حکم کرو شہزادی. تمہاری یونیورسٹی میں کیا میں بارات لے کر تمہاری حویلی کے باہر آ کر رکوں گا. وہ بے حد دلکشی سے بولا تھا جبکہ اس کی باتوں نے اسے گھبرا کر سنیہا نے بنا کچھ بھی کہے فون کاٹ دیا تھا. تو آپ نے غصے سے فون کو دیکھا تھا. پوری طرح آواز تو سننے دیتی. شہزادی کیوں تڑپاتی ہو اپنے عاشق کو. وہ فون کو اپنے لبوں سے چومتا واپس بیڈ پر دیر ہو گیا تھا. یہ بالکل ویران جگہ تھی. اس وقت یہاں سوائے اندھیرے کے اور کچھ بھی نہیں تھا. عالم بہت دور فاصلے پر ایک لائٹ جلتی نظر آئی تو وہ اسی کی طرف بڑھنے لگا. وہ جلد ہی وہاں پہنچ گیا تھا. وہ شخص دوسری طرف پیٹ کے کسی سے فون پر بات کر رہا تھا. آؤ عالم سلطان شاہ آؤ. بہت انتظار کروایا تم نے. لگتا ہے تمہیں روحان کی جان پیاری نہیں. وہ اس طرف منہ کیے بولا تو عالم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی. مہراج عسکر. انسان کو ایسے کام کرنے ہی نہیں چاہیے جس کے لیے اسے منہ چھپانا پڑے. وہ اس کا نام لیتے ہوئے کوئی اعلان کر رہا تھا. وہ اسے جانتا ہے. اس نے حیران ہو کر کہا. اس کی جانب چہرہ پھیرا. تو تم مجھے جانتے ہو؟ وہ جو پہلے حیران تھا بے فکر ہو کر پوچھنے لگا. نہیں مہراج میں تمہیں نہیں جانتا. تمہیں ایسا کچھ ہے ہی نہیں جو تمہیں جانا جائے. تم ایک ناکام اور ایک دھوکے باز شخص ہو. تمہیں دوستی نبھانی نہیں آئی. تمہیں رشتے نبھانے نہیں آئے. تم مطلب میں گرے صرف اپنی ذات سے محبت کرنے والے شخص ہو. تمہیں سوائے خود کے اور کسی کی محبت نہیں ہے. اس چیز نے تمہیں صرف نقصان ہی پہنچایا ہے. تمہاری بیوی نے تم سے طلاق لے لی لیکن اپنی گندی فطرت تم نے پھر بھی نہ چھوڑی. تم وہی ہو نا جس نے پاکیزہ صفدر شاہ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی اسے گھر میں اکیلے پا کر. اور جب تم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تو تم نے واصف شاہ کے سامنے اپنے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ انہیں سے پاکیزہ ہی غلط لگے. پاکیزہ کو طلاق ہو گئی. وہ برباد ہو گئی. لیکن صفدر شاہ نے اپنی بہن سے جڑے تمہارے رشتے کو ختم کر ڈالا. تمہیں 3 سال کی جیل ہو گئی اپنے گندے کاموں کی وجہ سے. تم 3 سال جیل میں سڑتے رہے لیکن تمہیں عقل تو پھر بھی نہ آئی. یہاں تک کہ تم اس قدر مطلبی شخص ہو کہ تم نے اپنی بیٹی تک کو استعمال کیا. تم نے اپنی بیٹی کو کسی خوراک کی طرح روحان کے آگے ڈال کر اپنے مقصد پورا کرنا چاہا. یہ سب کچھ جانتا ہوں میں لیکن تمہارا مقصد صرف ہمیں برباد کرنا ہے.
अपने सो कॉल्ड अना का इंतकाम लेना है, लेकिन तुम रोहान का कत्ल क्यों करना चाहते हो? मैं यहाँ इस सवाल का जवाब लेने आया हूँ। आप तो मेरा वक्त बर्बाद मत करो। वो इसे देखते हुए घड़ी की जानिब देखने लगा था। तुम बहुत समझदार हो आलम, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं तुम लोगों से सिर्फ और सिर्फ अपने साथ हुई ज्यादतियों का बदला लेना चाहता हूँ। ज्यादतियाँ? आलम ने हैरत से इसे देखा था। ज्यादती मासूम के साथ होती है महराज, जालिम के साथ नहीं। तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, जरा रोशनी डालोगे? वो हैरत में गिरा इसे देख रहा था। पागल इंसान की इस चीज को बुनियाद बनाकर ये सब कुछ कर रहा था। क्या ये मेरे साथ जुल्म नहीं कि मुझसे मेरी बीवी छीन ले गई? मुझे जबरदस्ती तलाक देने पर मजबूर किया गया। मेरी बीवी माँ बनने वाली थी, वो मेरे दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। सिर्फ और सिर्फ वासिफ शाह और सफदर शाह की वजह से हुआ था ये सब कुछ। वासिफ शाह ने पाकीज़ा को तलाक दी तो सफदर ने इसे निकाह करके मेरी बीवी को मुझसे ज़बरदस्ती तलाक दिलवाई। वासिफ शाह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वह मुझ पर बहुत एतबार करता था। वो अक्सर मुझे अपने घर लेकर जाया करता था। पाकीज़ा को देखते ही मेरी नीयत ख़राब हो गई। मुझे बस किसी भी हाल में पाकीज़ा चाहिए थी। मुझे पता चला कि पाकीज़ा हवेली की रवायात से तंग आकर अपना घर शहर में ले चुकी है, जिसमें वासिफ का आना जाना बहुत कम है। वासिफ की भाभी नजस अक्सर ही इसके कान पाकीज़ा के खिलाफ भरती रहती थी कि पाकीज़ा आज़ाद माहौल की आदी है, इसलिए इसे हवेली की रस्म और रिवाज पसंद नहीं। नजस ये सब कुछ अपनी बरात निकालने के लिए करती थी, लेकिन मुझे इससे बहुत फायदा हो गया। वासिफ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम मुझसे शेयर करने लगा। वो कहता था वो चाहता है कि इसकी बीवी और बच्चे इसके खानदान के साथ मिलजुल कर रहे। वो अपने बाप को नहीं छोड़ सकता था, लेकिन पाकीज़ा इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी। इसने कहा कि पाकीज़ा को समझाने जाता हूँ तो मैंने कहा कि मैं पाकीज़ा को समझाने जाता हूँ। पहले तो इसने मना कर दिया, लेकिन मेरे बार बार कहने पर इसने मुझे इजाज़त दे दी। इस रात वासिफ ने मुझे और मेरी बीवी को रात 9 बजे के करीब अपने घर खाने के वक्त पर बुलाया था। मैंने अपनी बीवी को इस बारे में कुछ नहीं बताया और 9 बजे की बजाय मैं 6:30 बजे वहाँ चला गया। लेकिन मेरी खराब किस्मत, इस दिन सफदर शाह ने मुझे देख लिया। पहले इसने मुझे शहर में आने की वजह पूछी तो मैंने इसे सच बता दिया कि मेरे दोस्त की पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है। मैं इसकी बीवी को समझाने आया हूँ। सफदर ने मुझसे कहा कि कोई मसला हो तो मुझसे शेयर कर सकते हो। इन दिनों तलाक के केस ज़्यादा ही हल कर रहा था। इसे बात करके मुझे होटल से बाहर निकला तो मेरा वहम गुमान में भी ना था कि मैं अपने सिगरेट वहीं होटल की चाय टेबल पर छोड़ आऊँगा। इस वक्त पाकीज़ा को घर में अकेला सोचकर मेरे दिमाग पर शैतान सवार हो चुका था। लेकिन सफदर जानता था कि मैं सिगरेट का किस हद तक नशाई हूँ। यही वजह थी कि वो मेरे पीछे सिगरेट देने आ गया और इसने सब कुछ देख लिया। मैं अपना मकसद पूरा नहीं कर सका। सफदर शाह ने मुझे बहुत मारा, लेकिन वासिफ के सामने मैंने सारी कहानी बदल डाली। मैंने कहानी का दूसरा हिस्सा इसके सामने पेश कर दिया। वो पहले ही भरा हुआ था। वो सफदर से बचपन से नफरत करता था, जो रिश्तों में इसके चाचा का बेटा था। मैंने सारा इल्ज़ाम सफदर पर डालकर वहाँ से गायब हो गया और वासिफ ने अपनी बीवी को तलाक दे डाली। शायद ये सब कुछ इसने सफदर की नफरत में किया था, या पाकीज़ा पर इसे यकीन नहीं था, या इस खानदान ने इसके दिमाग में एक तन्हा औरत के खिलाफ इतना जहर भर दिया था वो इस पर यकीन कर ही ना सका। लेकिन इसने अपना घर खुद ही बर्बाद कर लिया, जिसके बाद इसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। वक्ती तो वो पाकीज़ा को तलाक देकर इसे अलग हो गया था, लेकिन बाद में सिवाय पछतावे के और कुछ न मिला। सफदर ने पाकीज़ा को खामोश न बैठने दिया। पाकीज़ा ने मुझ पर केस करा दिया, जिसकी वजह से मुझे 3 साल जेल की सज़ा हो गई। मेरी तलाक हो गई। मेरे दोस्त को पता चल गई सारी हकीकत। इसने मेरे साथ छोड़ दिया। मैं बर्बाद हो गया। मेरी बीवी को कैंसर था और इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। मेरा दूसरा बच्चा ज़ाया हो गया, लेकिन बीवी के मरने का मुझे ये फ़ायदा हो गया कि 3 साल के बाद अपनी बेटी की कस्टडी मुझे बहुत आसानी से मिल गई। मुझे पाकीज़ा सफदर और इसके बच्चों से नफरत थी। वो इनको फंसाना मेरा फैसला था, लेकिन इसे जान से मारना हरगिज़ नहीं। इसे जान से मारने वाला तुम्हारा बेहद अजीज रिश्तेदार है। और एक और बात और बताऊँ, मैं सिर्फ रोहान को नहीं बल्कि तुम्हें भी जान से मार देना चाहता है। ऐसा लगा मुझे पाकीज़ा और सफदर के बच्चों से नफरत थी। मैं इनको फंसाने का फैसला कर चुका था, लेकिन इसे जान से मारना हरगिज़ नहीं। इसे जान से मारने वाला तुम्हारा बेहद अजीज रिश्तेदार है। और एक और बात बताऊं, मैं सिर्फ रोहान को ही नहीं बल्कि तुम्हें भी जान से मार देना चाहता हूँ। कैसा लगा झटका? कहो नाम भी बताऊं या फिर तुमने अंदाजा लगा लिया? वो हंसते हुए बोला था और साथ ही पीछे की जानिब इशारा किया। आलम ने फ़ोन पीछे करके देखा। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन इतना भी नहीं। जानते हो महराज, मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक शख्स को मुखलिस देखा है, सफदर शाह को। मैंने इस जैसा इंसान कभी नहीं देखा जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है। वो शख्स सच में मेरा आइडियल है और मुझे अफसोस है कि ये शख्स मेरा खूनी रिश्ता है। वो सामने मजबूर शख्स को देखते हुए बोला। ना जाने क्यों इसकी आंखें नम होने लगी थी जब अचानक ही पुलिस तेजी से भागती हुई इसकी जगह में दाखिल हुई थी। आलम सुल्तान शाह, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने हमें धोखा दिया। इसकी ज़्यादा तुम्हें मिलेगी। वो चिल्लाते हुए अपनी बंदूक इस पर तान चुका था। इससे पहले कि वो गोली चलाता, पुलिस इसके हाथ पर गोली मार चुकी थी।
पुलिस ने इसके हाथ पर गोली मारी थी, बंदूक दूर जा गिरी थी। आलम मुस्कुराकर पलटा ही था जब एक गोली इसके सीने के आर पार हो गई। यकीन करना फिर भी नामुमकिन हो गया था। खूनी रिश्ते इतने भी गिर सकते हैं। वो भी एक झटके से न संभला था जब दूसरी गोली इसके बाजू को चीरते हुए इसे लहूलुहान कर गई। वो शख्स पिस्तौल फेंकता वहां से भागने लगा था। पुलिस इसके पीछे भागने लगी। जब महराज को गिरफ्तार कर लिया गया था, पुलिस के नुमाइंदे इसके आगे पीछे जमा होने लगे। रोहान, तकलीफ से अल्फाज इसके मुंह से टूट टूट कर निकल रहे थे। सर रोहान बेहोश की हालत में है। इन्हें कमरे में से एक कमरे से मिला है। एम्बुलेंस बुलाओ। इंस्पेक्टर इसी की परेशानी दूर करते हुए कांस्टेबल को हुक्म देने लगा था, जबकि आलम की आंखें अब आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी थी। बचपन की यादें इसकी आंखों में फिर से जीने लगी। वह शख्स इसे कंधों पर उठाकर घूमता था। इसने इसे बंदूक चलाना सिखाई थी। वहां से शेर और भेड़िए की कहानी सुनाता था, जिसमें वो कहता था कि भेड़िया अपनों में छुपा होता है, और आज इसे इस बात पर यकीन हो गया था। शाह हवेली में हंगामा सा मच चुका था। आलम सुल्तान शाह को गोलियां लगी थी। वो इस वक्त अस्पताल में एडमिट था। हर बड़े न्यूज चैनल में यही खबर चल रही थी। शाह हवेली के साथ साथ ये खबर बड़ी हवेली तक पहुंच चुकी थी। जिस जगह यह वाकया पेश आया था, तफसीलात के मुताबिक वहां आलम सुल्तान शाह अपने छोटे भाई रोहान शाह को बचाने गया था। रोहान की हालत अब खतरे से बाहर थी। इसे बेहोशी की ओवरडोज लगा दी गई थी, लेकिन वक्त रहते इसका इलाज हो गया था, जिसकी वजह से अब वो बिल्कुल ठीक इस वक्त अस्पताल में दाखिल था। जबकि आलम शाह की जान खतरे में थी। डॉक्टर के मुताबिक इसका खून बहुत ज्यादा मिकदार में जाया हो चुका था। ये खबर आग की तरह फैलती चली जा रही थी। शाह हवेली में तो जैसे करहम मचा हुआ था। हर कोई अस्पताल जाना चाहता था। दानेन का तो जब से आलम की हालत का पता चला था, इसे बिल्कुल चुप लग गई थी। वह किसी से कुछ भी नहीं कह रही थी सिवाय अपने रब के, क्योंकि वह जानती थी इस मुश्किल वक्त में इसका और कोई नहीं सुनेगा सिवाय इसकी पाकजात की, जो इंसान की शहरक से भी ज्यादा करीब है। अपने इकलौते बेटे की हालत जानकर नसरीन बेगम बेहोश हो चुकी थी। इन्हें अब तक होश नहीं आया था। जबकि सुल्तान शाह झुके कंधों के साथ कभी अस्पताल तो कभी घर के चक्कर लगा रहे थे। वासफ शाह इनका साथ देने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जबकि हैदर शाह आज शाम ही अमेरिका के लिए रवाना हो चुके थे। तुराब अस्पताल में था। वो तो ऑपरेशन के दौरान भी इस कमरे के बाहर से एक सेकंड भी ना हिला था। गोलियां निकाल ली गई थी, लेकिन आलम को होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स का कहना था कि अगर 24 घंटे में होश ना आया तो आलम की जान को खतरा हो सकता है। सब लोग परेशान थे। किसी के वहम गुमान में भी न था कि यूं इतना बड़ा अचानक हादसा हो जाएगा। दादा जान का बीपी एक बार फिर से खतरनाक हद तक हाई हो चुका था। आलम की टेंशन ने इन्हें बेहद बीमार कर दिया था। वो कुछ ही घंटों में बहुत ज़्यादा बुरे लगने लगे थे। आलम को होश नहीं आ रहा था। 24 घंटे मुकम्मल होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी थे। तो राब ने फ़ोन करके इन्हें बताया था कि डॉक्टर्स नाउमीदी का इजहार कर रहे हैं। नसरीन बेगम को होश आया तो इनका कलेजा अपने बेटे के लिए तड़प उठा था। इनकी जिद पर वो इन्हें अस्पताल ले आए। डॉक्टर्स का कहना था कि अब आप लोग सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। हम लोग अपना काम कर चुके हैं। अब इंशाल्लाह अल्लाह अपना काम करेगा। सुल्तान शाह और नसरीन शाह ना जाने कितनी देर आलम के करीब बैठकर इसे बुलाते रहे थे कि शायद इनकी पुकार पर वो बोल उठे, जैसे हमेशा वो इनकी एक पुकार पर हाजिर हो जाता है। लेकिन अब वो खामोश था। किसी की पुकार पर नहीं वापस आ रहा था। नसरीन बेगम ने रो रो कर अपना हाल खराब करके रखा था, जबकि सुल्तान शाह के लिए तो अपने बेटे को इस तरह से देखना भी मुश्किल था। वासिफ शाह जितना हो सके इन्हें हौसला देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो समझते थे कि यह तकलीफ बहुत बड़ी है। जवान बेटे को खो देने की सोच ही अंदर तक हिलाकर रख देती है। दादा जान भी अस्पताल आ गए थे। इन सब ने इन्हें मना करके रखा था, लेकिन अपने लाडले पोतले की खातिर वो किसी भी बात को खाते में न लाए थे। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने पोते से मिलना था। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। आलम के पास थोड़ी देर बैठे वो इसे पुकारने की कोशिश करते रहे। वो इसे जगाना चाहते थे, लेकिन कोई इसकी पुकार इसे आंखें खोलने पर मजबूर नहीं कर रही थी। डॉक्टर का कहना था कि गोली दिल से 4 इंच के फासले पर लगी है। अगर 1 इंच मजीद दिल के करीब लगती तो बचना बेहद मुश्किल हो जाता। लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता था कि आलम की जान खतरे से बाहर है, क्योंकि इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इसका अंदरूनी सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता जाम हो रहा था। इसे होश में लाना बेहद जरूरी था, वरना हालात मजीद खराब हो सकते थे। इसे जिंदगी की तरफ वापस बुलाने की कोशिश की जाए, वरना जल्द ही वो इन सबको अलविदा कहकर हमेशा के लिए इनसे दूर हो जाएगा। अगर वो लोग इसे जिंदा देखना चाहते हैं तो इसे आंखें खोलने पर मजबूर करना होगा। कुछ ऐसा करना होगा कि वो वापस जिंदगी की तरफ लौट आए, वो अपनी मौत से लड़ने में कामयाब हो जाए। रफ्ता रफ्ता मशीनी सिस्टम की लाइन सीधी होती जा रही थी। वो मौत के बहुत करीब जा रहा था। जब तुराब को याद आया कि आलम ने इसे बताया था कि नैनी इससे पीछे नाराज हो गई है। तुराब ने हमेशा आलम के लबो लहजे में जिसके लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत महसूस की थी, वो इसकी नैन थी। वो अचानक उठ खड़ा हुआ तो दादाजानी से देखने लगे, जबकि नसीन बेगम बिना पल के चिपकाए आलम को देख रही थी। मालूम था सिर्फ इतना कि अगर आलम की सांसें रुक गई तो इनकी सांसें भी रुक जाएंगी। मैं दानेन को लेने जा रहा। मुझे यकीन है कि वो आलम को जिंदगी की तरफ खींच लाएगी। वो इसके अंदर जीने की ख्वाहिश पैदा करेगी। वो इसे हिम्मत देगी कि मौत से लड़ने की। मुझे यकीन है दानेन ऐसा कर सकती है। हाँ, तुम दानेन को लेकर आओ। वो मेरे बेटे को वापस लेकर आएगी। ये बहुत प्यार करता है इससे। मुझे यकीन है वो पुकारेगी तो आलम जरूर उठेगा। नसीर ने उम्मीद से इसकी तरफ देखा। वो सर हिलाता जल्दी से वहां से बाहर निकल गया था। ये सब कुछ किसने और क्यों किया था इसे बिल्कुल भी पता नहीं था। इसे बस आलम वापस चाहिए था। इसके पास ये एक वाहिद रिश्ता था जिसे वो बेपनाह मोहब्बत करता था। ये हकीकत है कि इसने कभी अपने बाप से मोहब्बत नहीं की थी, बल्कि हैदर शाह को तो अपनी नफरत के भी काबिल नहीं समझता था। लेकिन आलम वो वाहिद इंसान था जिसे वो बेपनाह मोहब्बत करता था। वो इसे कितनी मोहब्बत करता था वो खुद भी नहीं जानता था।
हाँ, बस इतना जानता था कि स्नेहा के अलावा अगर वो किसी के लिए अपनी जान दे सकता है तो वो आलम था, जो इसके हर सही गलत में इसका साथ देता रहा था। आलम इसका तायाजाद ही नहीं बल्कि दोस्त भी था, भाई था, उस्ताद भी था। वो इसके लिए इसका सब कुछ था और वो अपना सब कुछ खो नहीं सकता था। इसे आलम चाहिए था किसी भी हाल में, और इसका यकीन कहता था कि आलम ने दानिन से बढ़कर किसी से मोहब्बत नहीं की। वही इसके जीने की वाहिद वजह थी। इसे यकीन था वो अपने दानिन को दुनिया के सहारे हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। इसके पुकारने पर वो लौट कर आएगा। हाँ, अगर दानिन पुकारेगी तो वो लौट आएगा। वो अपनी मोहब्बत की आवाज़ पर मौत के मुंह से लौट आएगा। इसे आना होगा किसी भी हाल में। वो तेज़ी से गाड़ी दौड़ाता गाँव की हदूद से अभी बेहद दूर था। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। आलम को खो देने का ख्याल भी इसकी जान ले रहा था। इसने दानिन को फ़ोन किया था। दानिन जाए नमाज पर बैठी मुसलसल आलम की ज़िंदगी की दुआएं मांग रही थी। सब लोग बारी बारी आलम को देखने के लिए जा रहे थे, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह आलम की ज़ख्मी वजूद को अपनी आंखों से देख पाती। इसीलिए सबसे चुपकर कमरे में अकेली बैठी रो रही थी। अंदर एक अजीब सा खौफ भरा हुआ था। इसे हमेशा से लगता था वो जिससे मोहब्बत करती है वो इससे दूर हो जाता है। आज इसे ये बात सच लग रही थी। इसके माँ बाप इससे दूर चले गए और आज इसका शोहर भी इससे बहुत दूर जा रहा था। ये सोच आते ही वो एक बार फिर से शिद्दत से दुआएं मांगने लगी। इसके पास सिवाय दुआएं मांगने की और कोई चारा ना था। तो फ़ोन पर अदा तुराब का नंबर देखकर इसने फ़ौरन कॉल रिसीव की थी। अता, वो कैसे हैं? प्लीज़ मुझे बताएं। वो बेचैनी से पूछने लगी। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ नैन। आलम को सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। वो डॉक्टर कह रहा है कि आलम को बचाने के लिए हमें कोशिश करनी होगी। वो अपने ज़ख्मों से लड़ नहीं पा रहा। वो मौत के बेहद करीब जा चुका है। हमें इसे वापस लाने के लिए इसे कोई उम्मीद देनी होगी और मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम पुकारोगी तो वो लौट आएगा। वो तुमसे बेहद मोहब्बत करता है, तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाएगा। वो मौत से भी लड़ेगा। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अभी लेने के लिए आ रहा हूँ। इसके यकीन पर वो इनकार भी न कर सकी। वैसे ये भी न बता सकी कि आलम का जख्मों से चूर बदन देखना इस नाजुक सी लड़की के लिए बेहद मुश्किल है। बस इसके यकीन पर वो फौरन ही अपनी चादर निकालती नीचे हाल में आ गई थी, जहाँ बाहर अनम बैठी अपनी माँ के साथ रोई जा रही थी, जबकि सनम का भी हाल कुछ ऐसा ही था। अब क्यों निकली हो कमरे से बाहर? वहीं बैठी रहो, करती रहो बददमाएं। अब तुम्हें मिल गया होगा सुकून। यही चाहती थी ना तुम? तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ इसकी सजा अल्लाह हमें दे, इसलिए हम सबको माफ़ कर दिया तुमने और हमारा मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। अब तो सुकून मिल गया होगा ना? वो दुआएं देती रही हो ना, बद देती रही हो ना? मुबारक हो, तुम्हारी बद दुआ लग गई। मर रहा है वो। सनम बेहद गुस्से से इसके करीब आती से झंझोड़ चुकी थी। होश में आए सनम, होश में आई है सनम। मैं भला बद दुआ क्यों दूंगी? वो मेरा शोहर है, आपको क्या लगता है मैं अपने शोहर की मौत की बद दुआ दूंगी? मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैं सबको माफ़ कर चुकी हूँ। मैं जो आप लोगों के सामने हूँ अल्लाह के सामने भी वही हूँ, और वो अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। किसी की साजिश इसके सामने नहीं चलती। मैं अपने शोहर को मौत की बद दुआ देकर खुद बेवा होने की ख्वाहिश क्यों करूँगी? वो इसे देखते हुए इसे सवाल कर रही थी, या शायद इसकी छोटी सोच पर हैरान हो रही थी। वह घर से निकलती बाहर लॉन में खड़े होकर तुराब का इंतजार करने लगी। आंसू रवानी से इसकी आंखों से बहते चले जा रहे थे। शेर पाकीज़ा को लेकर अस्पताल आया था। किसी ने कोई एतराज़ नहीं उठाया था। इन्हें रोहान के कमरे में भेज दिया गया। रोहान दुआओं के जहरे असर गहरी नींद में था। पाकीज़ा बेगम इसके पास बैठी कितनी देर इसका चेहरा देखती रही। इनका बेटा जिंदा था, यह एहसास ही ने जैसे एक नई जिंदगी दे गया था। लेकिन आलम की हालत ने इन्हें बेहद परेशान कर दिया था। बेशक आज आलम जिस भी हाल में था इसके बेटे की वजह से था। इनके बेटे को बचाते हुए आलम खुद मौत के मुंह में चला गया था। काश वो इसके लिए कुछ कर पाती, लेकिन इस मामले में वो बेबस थी। सिर्फ इसे दुआएं ही दे सकती थी। वो इसके पास बैठी थी जब शेर आलम की हैरियत जानने के लिए चला गया था। आलम को पहले ही यकीन था कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं कोई अपना शामिल है, लेकिन कौन ये समझ नहीं आ रहा था। आलम ने यकीनन इस शख्स को अपनी आंखों से देखा होगा, यकीनन इसे पहचानता होगा। वो भी जानना चाहता था कि वो शख्स कौन है, लेकिन जब तक आलम को होश ना आ जाए ये जानना तकरीबन नामुमकिन था। आलम के कमरे से होकर वो पाकीज़ा के पास वापस आया था। चले चाची घर चलते हैं, बहुत वक्त हो गया है, अस्पताल में इतनी देर रुकने की इजाज़त नहीं है। वो पाकीज़ा बेगम के पास आते हुए बोला था, शेर मैं थोड़ी देर यहीं रहना चाहती हूँ रोहान के पास। इनकी आंखों में नमी उतरने लगी। चाची ऐसा मुमकिन नहीं है, ये अस्पताल के असलूक के खिलाफ है। मैं वादा करता हूँ मैं आपको कल फिर ले आऊँगा, लेकिन अभी यहाँ से चलना होगा। और वैसे भी रोहान को अभी होश नहीं आएगा। डॉक्टर का कहना है कि इसे नींद के इंजेक्शन लगाए गए हैं। 8 घंटे से पहले इसे बिल्कुल भी होश नहीं आएगा। आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, बेहतर है कि हम घर वापस चलते हैं। आप जब हुक्म करेंगे मैं आपको यहाँ ले आऊँगा। वो इन्हें देखकर समझाने लगा। पाकीज़ा बेगम ने एक नज़र रोहान के चेहरे को देखा और फिर हाँ में सर हिलाती इसके सहारे आहिस्ता आहिस्ता चलती बाहर निकल गई थी। वो इसे ले आया था। वो एक सेकंड भी नहीं रुका था। घर के बाहर ही इसने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो वो फ़ौरन ही निकल आई थी। वो वहाँ से इसे लेकर वापस पलट आया था। वो सारे रास्ते में मुसलसल रोती रही थी, जबकि तुराब अपने आंसू पर कंट्रोल करता रहा था और इसे समझाता रहा था कि आलम को कुछ भी नहीं होगा। समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसे क्या समझ रहा है। वो इसे समझा रहा है या अपने आप को यकीन दिला रहा है। तुराब ने इसे आलम के कमरे के अंदर बुलाया तो जैसे इसके पैर मन भारी हो गए थे। वो खुद भी आलम को देखने का हौसला नहीं पा रही थी। कमरे के अंदर सब लोग मौजूद थे। सब लोग इसे उम्मीदवारी नजरों से देख रहे थे, जैसे सबको यकीन हो कि वो आलम को वापस ले आएगी। इसे देखते ही नसीन बेगम ने अपनी कुर्सी छोड़ दी। वो बेहद मुश्किल से पैर उठाती आहिस्ता आहिस्ता बेड की जानिब बढ़ रही थी। नसीन बेगम इसे देखते हुए आलम को देखने लगी, जैसे कह रही हूँ कि आप सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है, तुम कोशिश करो तो इसे बचा लोगी। वो अपने आंसू साफ करते हुए इस कुर्सी पर जा बैठी। वो आलम के बेहद करीब थी। इसका सीना जख्मों से चूर हुआ
हुआ था। सीने और कंधे के दरमियान एक बड़ी सी पट्टी बंधी हुई थी, जबकि बायां बाजू वैसे ही कैद था। तुम पुकारो अपने शोहर को दानेन, हमें यकीन है वो तुम्हें सुन सकता है। दादाजान की आवाज़ पर दानेन ने पलटकर आलम का चेहरा देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दादाजान की आवाज़ पर दानेन ने पलट कर देखा। आलम का चेहरा देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसके आंसू जो मसलसल बह रहे थे वो किसी की उम्मीद तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या इसकी मोहब्बत में इतनी ताकत थी कि वह एक इंसान को जीने की उम्मीद दे पाती? क्या इसकी मोहब्बत कमज़ोर थी? इसका दिल इसके सामने सवाल उठा रहा था। नहीं, इसकी मोहब्बत हरगिज़ कमज़ोर नहीं थी। वो इसे पुकारेगी तो वो आएगा। अपनी नैन के लिए इसे यकीन था। आलम, इसने बेहद कम आवाज़ में पुकारा। आलम उठे, आलम प्लीज़ उठें। आलम, वो पूरी शिद्दत से इसे पुकार रही थी। आलम, अगर अब आप ना उठे तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी, वो भी पक्की वाली। फिर आप मनाएंगे तब भी नहीं बोलूंगी। आलम प्लीज़ उठ जाएं। आपको पता है ना कोई नहीं है मुझसे प्यार करने वाला। आप भी नहीं होंगे तो मेरा कोई भी नहीं होगा। आपको पता है ना मुझसे कोई प्यार नहीं करता, सिर्फ आप ही हैं। आलम प्लीज़ उठ जाएं वरना मैं मर जाऊंगी। अगर आपको कुछ हो गया ना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इसके रोने में शिद्दत आती जा रही थी। इसकी उतनी पुकार पर भी आलम ना उठा। इसने नाउम्मीदी से तुराब की जानिब देखा था, जैसे कह रही हो बस इसमें इतनी ही हिम्मत थी। इसका दिल तड़प रहा था। शायद तुराब भी इसकी कंडीशन समझ चुका था, इसलिए कुछ नहीं बोला। वो बेजान नज़रों से आलम की जानिब देखती आहिस्ता से इसके करीब से उठी थी। दादाजान ऊंची आवाज़ में रोने लगे। इस बार तुराब का जब्त भी जवाब दे चुका था। वो तके कदमों से के साथ कमरे से बाहर निकल गया। नसीम बेगम गश खाने लगी थी, जबकि सुल्तान साहब ये सब कुछ हैंडल नहीं हो पा रहा था। दादाजान का बीपी फिर से खतरनाक हद तक तेज हो चुका था। वो आलम को खो चुके थे। वो मौत से हार रहा था। इसकी नैन भी इसे पुकार ना सकी थी। वो इसकी आवाज़ पर लौट कर ना आया था। इसने इसे माफ़ किया था, लेकिन शायद किस्मत ने इसे माफ़ ना किया था। नैन को लगा जैसे इसके कदमों में जान खत्म हो चुकी है। अब इसके पास कुछ नहीं बचा था। सब रो रहे थे जब अचानक कमरे में अनम और सनम दाखिल हुई। इसके पीछे ही नरजस बेगम भी थी। सनम तेजी से इसके पास आई और पागलों की तरह इस पर थप्पों की बरसात कर दी। मिल गया सुकून हम सबसे, आलम को छीन कर। खुश हो, हमने तुम्हें तकलीफ दी थी। आलम का कातिल वो शख्स नहीं जिसने इसे मारा है, बल्कि तुम हो। तुम्हारी वजह से आज आलम इस हाल में है। तुम्हें कोई हक नहीं है आलम के पास रहने का। दफा हो जाओ यहाँ से और आइंदा कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। सब हैरानगी से सनम को देख रहे थे। ये वक्त भला ऐसी बातों का था। वो इसका हाथ पकड़ कर घसीट रही थी। वो बेजान जिस्म लिए इसके साथ चलती जा रही थी। जब इसे अपने हाथ पर पकड़ महसूस हुई, जैसे सनम भी महसूस कर चुकी थी, इसने मुड़कर देखा। इसकी आंखें बंद थी, लेकिन इनके हाथ पर इसकी हाथ की सख्ती बला की थी। सनम इसका हाथ छोड़ती डॉक्टर कहती बाहर भागी थी। नैन सिर्फ अपना हाथ देख रही थी जो उसके मजबूत गिरफ्त में कैद था। डॉक्टर तेजी से कमरे में दाखिल हुए। आप सब लोग बाहर जाएं प्लीज, डॉक्टर ने इन्हें देखते हुए बोला था। सब जा रहे थे, जबकि नैन इसकी गिरफ्त से अपना हाथ निकालने की कोशिश कर रही थी। नर्स इसकी मदद करने लगी। डॉक्टर वो हाथ नहीं छोड़ रहे। नर्स ने बेबसी से कहा इसके हाथ से इसकी पकड़ से हाथ निकालना नामुमकिन था। मिसिस आलम, आप यहीं पर रुकें। आपके हस्बैंड नहीं चाहते कि आप इनसे दूर हो जाएं। डॉक्टर कहकर अपने काम की तरफ मुतवज्जो हो गया था। मशीनी झटके और डॉक्टर की ट्रीटमेंट के दौरान इसकी पकड़ में जरा सी नरमी आई थी, लेकिन इसने हाथ छोड़ा नहीं था। यहाँ ऐसा क्या हुआ जो इनकी बर्दाश्त से बाहर था? मेरा मतलब है यहाँ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो मौत से लड़ने में कामयाब हुए हैं। डॉक्टर इसे चेक करते हुए बोला तो नैन का ध्यान बेसाख्ता सनम की जानिब गया था। तो क्या वो चाहती थी कि अपनी नैन की तकलीफ वो बर्दाश्त नहीं कर सकता? क्या वो जानती थी कि वो नैन को तकलीफ में नहीं देख सकता? मिसिस आलम, आप यहीं रहें क्योंकि आपके शोहर आपको खुद से दूर नहीं करना चाहते। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा था। इनकी जान अब खतरे से बाहर है। वैसे मानना पड़ेगा बहुत प्यार करते हैं आपसे, इसीलिए आपका हाथ इस कंडीशन में भी नहीं छोड़ रहे, जबकि गोली भी इसी साइड पर लगी है। आप कोशिश कीजिएगा कि इन्हें झटका ना लगे, बल्कि आप इनके पास ही रहें। मेरा नहीं ख्याल कि ये आपका हाथ छोड़ने का इरादा रखते हैं। वो मुस्कुराकर कहता बाहर निकल गया था। दानेन इसके पास बेड पर बैठी इसे देखने लगी थी। वो इसे देखे जा रही थी जब अचानक झुककर इसके गालों पर अपने लब रखे। इसके हाथ पर आलम की गिरफ्त सख्त हुई थी। थरकी आलू, वो खिलखिलाकर इसके कान में सरगोशी करने लगी। डॉक्टर ने कहा था कि 1-2 घंटे में से होश आ जाएगा, तब तक वो इसके पास रहे। वो इसे महसूस कर सकता है, इसकी सारी बातें सुन सकता है। स्नेहा सुबह से दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रही थी, तो ताई अम्मी के साथ साथ चाची भी इसकी चीज़ें तैयार करने में लगी हुई थी। पाकीज़ा बेगम ने इसे बहुत बार मना किया था, यहाँ तक कि सफदर शाह से बात की थी कि वो स्नेहा की पढ़ाई पर किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इनका कहना था कि इनकी बेटी की पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए। वो कुछ पढ़ना चाहती है, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है। वो किसी को भी अपनी बेटी के ख्वाब में रुकावट नहीं बनने देंगे। पाकीज़ा हर बार की तरह इनकी जिद पर खामोश हो गई थी, इसीलिए तो इस वक्त इसके कमरे में इसकी जाने की तैयारी में मगन थी। अब मौसम बदल रहा था तो ज़्यादा कपड़े गर्म रखो। अब क्या पता गाँव के बाद शहर में कितनी सर्दी है। सफिया बेगम इसके स्वेटर रखते हुए बोली थी, जबकि स्नेहा अपना छोटा छोटा सामान समेटती हाँ में सर हिला गई थी, जबकि लाली वहीं बेड पर देर इन सबको देख रही थी। क्या बात है, यूनिवर्सिटी जाने वालों तो VIP होते हैं और हमें तो कोई मुंह ही नहीं लगाता। अरे खुदा के खौफ से डरो, इतनी मोहब्बत सिर्फ एक को ना दो।
जरा मुझ मासूम को देखो, कैसे आप लोगों के एक बार कहने से इस हिटलर मुशर खड़ूस के आके अपनी छोटी सी जान रख दी। मेरी वफादारी को भी एक नजर देख लो, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप लोगों की मर्जी पर सर झुका लिया। क्या मेरे अरमान नहीं थे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाकर पढ़ने के? क्या मेरे अरमान नहीं थे? लाली बाद में यार पहले ही मुझे नोट्स नहीं मिल रहे। और खबरदार जो तुमने मेरे अदा को खड़ूस और हिटलर बोला, हाँ मुझे बोल सकती हूँ क्योंकि ये चीज़ इन पर जचती है। वो इसे टोकते हुए दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई थी। हाँ मैं तो कुछ भी ना बोलूँ, वही बोलते रहे। अरे माओ जरा ख्याल करो, जुल्म हुआ है मेरे साथ। शादी के बाद मुझे इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ाई जा रही हैं, मेरी किसी बात को नहीं माना जा रहा। मुझ पर दिन रात जुल्म हो रहे हैं। माओ देखो जरा इस मासूम को, जिस पर दिन रात तशद्दुद किया जा रहा है। वो दुआएं दे रही थी लेकिन इसकी दुआएं सुन कौन रहा था? हर कोई अपने काम में मसरूफ था। तो तुम पर ये सारा तशद्दुद खुद पर खुशी खुशी बर्दाश्त कर रही हो। मेरे अदा ने तुम्हें पढ़ाई के लिए मना कर दिया था, तुम खुद ही शौकशरा हुआ था माहम से आगे निकलने का। अब ये उल्टी सीधी हरकतें तुम अदा को अपनी तरफ तवज्जो करने के लिए करती हो। स्नेहा ने इसे जरा सा हकीकत का आईना दिखाया तो वो मुंह खोले से घूरने लगी थी। कौन सी उल्टी सीधी हरकतें मैं क्यों कुछ भी करूंगी इन्हें अपनी तरफ तवज्जो करने के लिए? वो इसे देखते हुए बोली अंदाज में फला का नाश्ता, क्योंकि तुम मेरे बेटे से बहुत मोहब्बत करती हो। आज पहली बार पाकिज़ा ने इनकी बातों में दखलंदाजी की थी। मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? इनके जवाब में वो घूरते हुए बोली जब अचानक बाहर से शेर की पुकार सुनाई दी थी। वो घर आ चुका था, मतलब है कि इसे दीदारी यार की ज़रूरत थी। हाय मेरे शेरू आ गए, वो खुशी से चहकते हुए बोली। इसके अंदाज ने सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। वो हफीफ सी होकर सबको देखने लगी, फिर बड़े नाज से बोली मैं ज़रा अपने सरताज को चाय पानी का पूछ के आती हूँ। इसके जाते ही पाकिज़ा बेगम और सफ़िया बेगम इसके लिए दुआएं करने लगी थी। शादी से पहले सफ़िया बेगम को यह डर था कि अपने बचपने में वो अपने और शेर के रिश्ते को समझेगी भी या नहीं, लेकिन शेर ने इसे जिस तरह से हैंडल किया था, इसने सफ़िया बेगम की सारी परेशानी दूर कर डाली थी। शेर ने बहुत खूबसूरती से इसे अपनी मोहब्बत को संभाल लिया था, बल्कि इसे भी मजबूर कर डाला था खुद से मोहब्बत करने के लिए। वो जन मरीद हरगिज़ नहीं था, लेकिन इसकी छोटी छोटी फरमाइशें पूरी करके इसे अहमियत ज़रूर देता था। इसे इस बात का एहसास ज़रूर दिलाता था कि वो इसके लिए कितनी अहम है। सफ़िया बेगम को तो अपने दिमाग में कभी कोई बुराई पहले भी नजर न आई थी। वो तो अपनी बेटी की हरकतों से आजिज़ आ गई थी, जो वक्त के साथ कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही थी। हाय सरताज आप आ गए, आते ही सो गए। इसे बेड पर सोए हुए पाया तो फौरन इसके पास चली आई थी। वो साथ ही आती इसके सीने पर चढ़ी, इसकी मूंछों का इकलौता अलग हुआ बाल पकड़ने लगी। जब अचानक शेर ने इसका हाथ थाम कर उंगली के इशारे से इसे मना किया। वह इसे अपनी मूंछों को छूने की इजाज़त नहीं देता था। लाली मुंह बनाते इसके सीने पर सर रखते हुए आंखें मौन गई थी। क्या हुआ, थक गए हैं? मैं चाय बनाकर लाऊं? इसका अंदाज तो वो जो समेटे हुए था। तुम ही मेरी चाय हो। वो थोड़ी देर यहाँ बैठकर मेरा दिमाग खाओ, खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगा। वो इसका सर अपने सीने पर रखते हुए बोला। लाली ने पहले मुंह फैलाया, फिर फखर से सर उठाती ओके कहकर दोबारा इसके सीने पर सर रख गई थी। लाली ने आहिस्ता से अपना हाथ एक बार फिर से इसके चेहरे की तरफ ले जाने की कोशिश की। शेर जो आंखें बंद करके आराम से लेटा हुआ था, इसका हाथ अपने चेहरे पर महसूस करके फौरन इसका हाथ पकड़ गया। ज़कूटा जिन, आपकी मूछ का एक बार अलग होकर अपने साथियों से बिछड़ गया है। मैं साथ कर रही हूँ, अलग होकर रो रहा है बेचारा, अकेला तन्हा। लाली ने समझाना चाहा। मैं खुद कर लूँगा, तुम बस वो करो जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया है। वो ज़रा सख्ती से बोला तो लाली मुँह बनाती इसके सीने पर उंगलियों से कुछ लिखने लगी, जबकि वो सिर्फ इसे महसूस कर रहा था। इसकी हरकतें इसे सुकून दे रही थी। इसने कमरे में कदम रखा तो बाजेब शीशे के सामने खड़ी बाल बना रही थी। न जाने क्यों आजकल वो इसे खुद से दूर महसूस कर रहा था। कुछ दिनों से वो खुद भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था। फिर आलम को गोली लगी थी, इस चीज़ ने भी इसे परेशान किया हुआ था। आलम अब खतरे से बाहर था, इसलिए वो रिलैक्स हो चुका था। रात ज़िया ने हादी के सोने के बाद इसे अपने करीब करना चाहा तो वो बिना कुछ बोले फासला बना गई। इसकी ये हरकत इसे पसंद ना आई, लेकिन वो बिना कुछ बोले सो गया। इसे लगा शायद इसकी तबीयत खराब है। प्रेगनेंसी के चौथे माह में बेजारी एक आम सी बात थी। वो दरवाज़ा बंद करके इसके पास आ गया, इसे अपनी बाहों में लेते हुए आहिस्ता से अपने लब इसकी गर्दन पर रखे। सियार नहीं प्लीज़, वह इसे पीछे करते हुए बोली थी। क्या हुआ जान, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वह फिक्रमंद हुआ। मैं ठीक हूँ, इसने फ़ौरन जवाब दिया और कुछ फासले पर होने लगी। वापस आओ। इसके 2 कदम के फासले पर वो सद लहजे में बोला। इसने नामहसूस अंदाज में ये हरकत की थी, लेकिन वह फिर भी जान गया था। इसका सख्त लहजा पासिब को वापस इसके करीब आने पर मजबूर कर गया। ज़ियार आहिस्ता से इसका चेहरा थाम कर इसके नाजुक लबों को अपने लबों के दस्तर में ले चुका था। इसके अंदाज ने इसे घबराने पर मजबूर किया। इसके लबों को आज़ाद करके वह इसका बिगड़ा हुआ तनासब देख रहा था, जबकि पासिब लंबी लंबी सांसें लेती इसके सीने पर सर रख चुकी थी। ज़ियार इसे अपने साथ लगाए इसके गिर्द अपना एहसास तंग कर गया। इसकी गर्दन को चूमता हुआ इसे खुद में कैद करने लगा, जबकि पासिब के दिमाग में वरेरा की बातें चल रही थी। वह इस अंदाज में से दूर हुई कि वह ज़्यादा महसूस न कर सके। ज़ियार ने इसकी हरकत पर घूर कर देखा। वो पाकिज़ा चाची के लिए सूप बनाने के रख के आई थी। वो इसे दूर होने की वजह बयान कर दी, जैसे इसे इजाज़त मांग रही थी। जल्दी आना, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ।
वो इजाज़त देते हुए बोला तो पासे फौरन कमरे से चली गई थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ज़ियार को खुद से कैसे दूर रखे। बरेरा का दूसरी बार फ़ोन आ चुका था। आलम आज जिस हाल में था इसकी वजह बरेरा थी। वो अब बरेरा की बात ना मानकर ज़ियार को इस हाल में नहीं लाकर जा सकती थी। आलम को होश आ चुका था। सब लोग कमरे में थे, जबकि इसने अभी तक नरीन का नाजुक सा हाथ अपने हाथ में कैद करके रखा था। इसकी जान खतरे से बाहर थी, लेकिन इसे कुछ दिन अस्पताल में ही रहना था। वो बचपन से बहुत ज़्यादा संजीदा और साबर बच्चा था। इसने कभी किसी को तंग नहीं किया था, लेकिन एक ही बार में अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। पुलिस इसका बयान ले चुकी थी। वो बहुत कोशिश के बावजूद भी दूसरे शख्स का नाम न ले सका, जिस पर तुराब इससे नाराज़ हो रहा था। इसका कहना था दूसरे शख्स का नाम किसी को पसंद नहीं आएगा। आप डॉक्टर ने इसे आराम करने के लिए कहा तो भी दानिन का हाथ इसके हाथ में था। आलम हाथ छोड़े, मुझे वॉशरूम जाना है। वो जो कब से अपने हाथ इसकी गिरफ्त से निकालने की कोशिश कर रही थी, इसकी घूरी पर बोली तो आलम मुस्कुराया। जाना ज़रूरी है? ऑफ कोर्स ज़रूरी है, वो घूरती हुई बोली थी। फिर तो तुम कुछ भी कर सकती हो, तो ज़रा एक प्यारी सी छोटी सी किस दे दो, जैसे मेरी बेहोशी के दौरान दी थी। इसके लहजे में शरारत थी। तो तुम्हारा ठरकी आलू तुमसे एक चुन्नी मुन्नी सी किस चाहता है, वो बेहद शरारत से बोला था। तो बाहर न जाने कौन से लोग वो होते हैं जो गोली लगने के बाद 3-4 हफ्ते बोल ही नहीं पाते, और आपका मुंह ही बंद नहीं हो रहा। वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, लेकिन आलम ने कोई असर ना लिया था। किस करो तो ही हाथ छूटेगा, वो जैसे शर्त रख रहा था। आलम मुझे वॉशरूम जाना है, वो इसे समझाने की कोशिश कर रही थी। हाँ तो टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो, किस करो जाओ। वो अपनी जिद पर कायम था। नहीं, मैं तो नाराज़ हूँ आपसे, भूल गए आप। वो याद दिलाने लगी। फार में गई नाराज़गी। अब अगर मुझसे नाराज़ हुई ना तो देखना अपना वो हाल। वो इसे खींचकर अपने करीब कर गया था। किस करो कि या मैं खुद करूं? वह इसे ऑप्शन दे रहा था। खरबूजे से पूछ रहे हैं छुरी पर गिरना है या छुरी खुद गिरे? वो घूरते हुए बोली तो आलम दिलकशी से मुस्कुराया था। मैं तो बीवी से पूछ रहा हूँ, खरबूजा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं। वो बेहद शरारत से बोला था। आलू को चालू जाने दीजिए प्लीज़। वो अब मिंटू पर उतर आई थी। पहले किस? वो मुस्कुराया। इसे तंग करने में अपना ही मज़ा था। मैं वापस आकर करूँगी, वो फ़ौरन बोली। तुम वापस मुझे मैसर ही नहीं होगी। पहले किस? वो अपनी जिद पर कायम था। आलम, वो आजिज़ी से बोली थी। पहले किस? वो पीछे ना हटा। आलम प्लीज़। वो मिन्नतें करने लगी। पहले किस? इसकी एक ही गर्दान थी। आलम देखें, फजूल बहस मत करो नैन, अभी तक तुम अपना काम खत्म करके वापस भी आ जाती, बेकार में अपना टाइम बर्बाद कर रही हो। वो टोकते हुए बोला। आलू के चालू कहीं के आप बहुत बुरे हैं, बहुत ज़्यादा। आलम ने मुस्कुराकर एतराफ़ किया। वो आहिस्ता से इसके मज़ीद करीब हुई, इसका चेहरा दूसरी तरफ फेर कर इसका गाल सामने किया। आलम आंखें बंद करते हुए मुस्कुराया। वो अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत एहसास को महसूस करने जा रहा था। इसके होठों का लम्स जिसका वो शिद्दत से इंतज़ार करता था। जा रहे आलम, बाद में शर्मा लेना, इतना भी मत पाओ, इसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर पाऊंगा। वो इसे अब तक चुप देखकर बोला था। एकदम चुप आलू के चालू कहीं के, मैं कर तो रही हूँ ना। वो ज़रा गुस्सा हुई। ओके सॉरी, आई एम वेटिंग। वो फ़ौरन माज़रत करने लगा। अब आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, किस लेने के लिए कुछ मैनर्स होते हैं। वो ज़रा इतरा कर बोली थी। मैं इस मामले में कच्चा हूँ जान, तुम समझा देना। मैंने इससे पहले कभी किसी लड़की से किस नहीं लिया। इसके अंदाज में शरारत ही शरारत थी। हाँ तो मैं तो जैसे लड़कियों को किस करने की आदि हूँ ना, वो बुरा बना गई थी। लड़कों को गोली मारा, तुम्हें मुझे किस करने की आदत होनी चाहिए। वो भरपूर शरारत से बोला। नैन नफ़ी में सर हिलाकर रह गई थी। नैन सिर्फ एक किस के लिए बोला है तो आधा घंटा लगा दिया। अभी तो गाल पर किस के लिए बोल रहा हूँ। अगर लिप्स के लिए कह देता तो तुम पूरा साल लगा देना था। अब कर भी तो क्या अब करूं भी तो क्या, इसी के लिए 21 के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होगी। तो इंतज़ार करते करते उकता गया था। हाँ तो कर तो रही हूँ, थोड़ा सब्र नहीं है क्या आप में? वो ज़रा गुस्सा हुई और इसके गाल के बिल्कुल करीब लब किए। इससे पहले कि वो अपने लब इसके गाल पर रखती, दरवाज़ा खुला और तुराब अचानक अंदर दाखिल हुआ। नैन की स्पीड देखने के लायक थी। आलम ने इसका हाथ छोड़ दिया था। वॉशरूम के अंदर जा चुकी थी। तुम दोनों रोमांस मार रहे थे। वो दरवाजे पर खड़ा शकीन नज़र से देखते हुए बोला था। तुम मारने दोगे तो कुछ मारेंगे ना। 5 मिनट सब्र नहीं होता तुमसे, बस हम मंजिल पर पहुंचने वाले थे। वो मुंह बनाकर बोला था। तुराब मुस्कुरा दिया। अच्छा ठीक है, तुम लोग मंजिल पर पहुंचो, मैं 15 मिनट बाद आता हूँ। वो हंसते हुए बोला। रहने दो यार, अब कौन सा इसने हाथ आना है। आलम ने सर दाह भरी। तुराब ने कहका लगाया था, उसके पास आ बैठा। तुमने पुलिस को सिर्फ एक नाम क्यों बताया, दूसरा नाम क्यों नहीं बताया? दूसरा कौन था आलम? वो इसकी नज़रों में झांकता सवाल कर रहा था। मैंने कहा तो सही कि मैं दूसरे आदमी को नहीं जानता। वो अंधेरे में खड़ा था, मैं इसे सही तरह से देख भी नहीं सका। आलम निगाहें चुराते हुए बोला। वह किसी के सामने झूठ नहीं बोलता था। क्या मैं इसे जानता हूँ? तो आपने सवाल किया था। इसे मैं भी नहीं जानता, वो कोई अनजान शख्स था। आलम ने बताने की कोशिश की।
तुराब अब नामे सर हिलाया था। मुझे बताओ आलम, क्या मैं इस शख्स को जानता हूँ? तुमने कहा था कि अपनों में ही कोई छुपा भेड़िया है। क्या मैं इस भेड़िए को जानता हूँ आलम? मुझे जवाब दो आलम। इसके चेहरे फेरने पर वो उसका चेहरा थाम कर वापस अपनी जगह नब करके पूछने लगा, आलम क्या मैं इस भेड़िए को जानता हूँ? क्या इस भेड़िए का नाम हैदर शाह है? वो सवाल कर रहा था। आलम के पास कोई जवाब नहीं था। आलम तुम्हें मेरी कसम, क्या वो हैदर शाह था? हाँ वो हैदर शाह था, मुझ पर गोली चलाने वाला, मुझे जान से मारने की कोशिश करने वाला, यहाँ तक कि रोहान की जान लेने की कोशिश करने वाला हैदर शाह था। आप यकीनन वजह भी जानना चाहते होगे तुम। वजह वही कसीपति है, वो चाहते हैं कि इस जायदाद का वारिस सिर्फ और सिर्फ तुराब हैदर साहब बने, इनका बेटा। इसकी दौलत का एक हिस्सा भी किसी और के पास ना जाए। वो चाहते हैं कि सब कुछ इनके बेटे को मिले। आलम ने कुछ भी नहीं छुपाया था, जानता था ये वही आदमी होगा। ये आदमी गिर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। नफरत है मुझे इससे। पहले इसने मेरी माँ को मार डाला, अब ये घटिया शख्स मुझसे मेरे रिश्तों को छीनना चाहता है। मैं इसे मार डालूंगा। वो गुस्से से आपे से बाहर होने लगा था। तुम किसी को कुछ नहीं कहोगे, तुम्हें मेरी कसम है तुराब, तुम इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करोगे। मैं खुद इस मसले का हल निकाल लूंगा। लेकिन आलम मैंने कहा ना, तुम कुछ भी नहीं करोगे, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह सब जाते हुए बोला। इसकी आंखों में चमकता आंसू देखकर इसने खुद इसके आंसू को अपने हाथों से साफ किए थे। दुनिया की कोई ताकत हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती तुराब। मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए क्या हो, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। तुम्हें मेरी कसम है तुम इस मामले में नहीं पड़ोगे, तुम कुछ भी नहीं करोगे। अच्छा अब तुम जाओ, आराम करो। इतने दिनों से अस्पताल में हो, अपनी हालत सुधारो। अपनी ऐसी हालत में तुम्हें स्नेहा देख ले तो कभी भी तुमसे शादी के लिए राजी ना हो। वो शरारत से मुस्कुराया। अब इसके तो अच्छे भी शादी के लिए तैयार होंगे। बुलाया है तेरे भाई को इसने मिलने के लिए, इस बार तो मैं मना कर ही आऊँगा। तुराब ने बताते हुए कहा था। 3-4 दिन से वो बेआरामी में यहाँ गुजार रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी इसके चेहरे की वजाहत बरकरार थी। इस कदर बेआरामी और बिखरे हुए में भी वो बेहद आराम से किसी को भी अपना असीर कर सकता था। चल ठीक है, फिर तू इसे मनाने जाओ, जाते हुए नैन को भेज देना, मुझे मेरा सीन पूरा करना है। वो शरारत से हंसते हुए बोला तो फिर तुराब भी हंस दिया था। तुराब से बातों के दौरान वो नैन को आहिस्ता से बाहर निकलते देख चुका था। इतनी आसानी से वो इसे छोड़ने वाला हरगिज़ नहीं था। आज ही तो इसके हाथ आई थी। सोचा था आज सिर्फ इंतजार ही करना पड़ेगा, लेकिन तुम तो सच में आ गई। कहीं आज कबूलियत का दिन तो नहीं, जो मांगो वो मिल जाए। इसे होटल के अंदर आते देखकर वो खुशी से बोला था, जबकि स्नेहा का सारा ध्यान आगे पीछे था। शायद डर था कि कोई इसे पहचान न ले। इसके डर को देखकर तुराब मुस्कुरा दिया था। डोंट वरी, यहाँ कोई नहीं है तुम्हें जानने वाला, और ना ही तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे पीछे जासूस लगाए हैं। बेफिक्र हो जाओ। और मैं भी तुम्हें ये बता देता हूँ कि ज़ियार और आलम शेर से मिलने के लिए गए हैं। शेर और ज़ियार आलम से मिलने के लिए गए हैं। तुम्हारे बाबा एक अहम केस के लिए कोर्ट में है, तुम्हारे ज़ार चाचू लंदन में है, और तुम्हारे सिकंदर ताया अपने ऑफिस में। अब तुम परेशान होना छोड़ दो। और हाँ, तुम्हारे घर की औरत घर पर ही है। वो बाकी बात खत्म करता अचानक से फिर बोला तो स्नेहा के लबों की तराश में प्यारी सी मुस्कान आकर गायब हुई थी, जिसे महसूस करके वो भी मुस्कुरा दिया। और साथ ही एक बेहद खूबसूरत सा गुलाब निकालकर इसे देने लगा, जिसे देखकर वह खुश होने के बजाय परेशान हुई। सब फूलों को छोड़कर तुम्हारे लिए यही सिलेक्ट किया है। पकड़ो ना, मैं जिंदगी में पहली बार किसी को फूल दे रहा हूँ। मैं किसी बीमार को भी नहीं देता। यहीं से अंदाजा लगा लो तुम कितनी स्पेशल हो। वो मुस्कुरा रहा था। स्नेहा को समझ में नहीं आ रहा था वो इसे तंग करने के लिए इस तरह से बातें कर रहा है या वो है ही ऐसा। नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए, वो इनकार करते हुए बोली। इसका इनकार सामने बैठे शख्स को हरगिज पसंद ना आया था, और इस बात की गवाह इसके माथे पर वाजिया होने वाली रगें थी। पकड़ो इसे, वो बेहद गुस्से से हुक्म दे रहा था। स्नेहा ने एक नज़र इसका चेहरा देखा और फिर सहम कर आहिस्ता से फूल थाम लिया। गुड गर्ल। अंदाज भी ऐसा था कैसे सबसे ज़्यादा अंदाज़ा भी है कैसे सबसे खूबसूरत फूल ढूंढ कर लाया हूँ। 1 घंटा लग गया था चूज़ करने में। अब कहो क्यों बुलाया, याद आ रही थी मेरी। वो फिर से नॉर्मल होकर शरारती अंदाज में बोला। स्नेहा ने फुल जोश में नामे गर्दन हिलाई थी। हाँ पता है मुझे, तुम्हें मेरी याद नहीं आ सकती। गर्दन मत तोड़ देना अपनी, वो इसका जोश देखते हुए बोला। स्नेहा को यहाँ आना ही गलत लगा था। इसने जल्दी से पेपर निकालकर इसके सामने कर दिए। वो सवालिया अंदाज में देख रहा था, ये क्या है। वो पेपर्स पर एक नज़र डाले बगैर बोला था, डिवोर्स पेपर्स। वो मध्यम सी आवाज़ में सर झुकाकर बोली। तो वैसे देकर पूछने लगा, बाबा ने दिए हैं, कहा है कि अगर मैं साइन कर दूँ ये केस संभाल लेंगे। वो बेहद कम आवाज़ में सर झुकाकर बोल रही थी। अगर तुराब का सारा ध्यान इसकी तरफ ना होता तो शायद वो सुन ही ना पाता। तो तुमने साइन कर दिए, वो इसे घूरते हुए बोला था। स्नेहा ने नाम में सर हिलाया। अच्छी बात है, जान बच गई तुम्हारी। वो रिलैक्स होकर बोला। स्नेहा ने हैरत से सर उठाकर से देखा था। क्या मतलब? वो पूछने लगी। मतलब यही जाना कि अगर तुमने साइन कर दिए होते तो एक गोली तुम्हें मारता और दूसरी खुद को। वो बहुत रिलैक्स होकर बोला, जबकि स्नेहा तो इसे देखकर रह गई थी। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? वो सवाल करने लगी। मैं सच बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें धमकी लग रही है तो साइन करके देख लो। तुम ये मत सोचना कि मैं अपनी जाती केस को कभी भी कोर्ट कचहरियों में पहुंचने दूंगा। मैं पहले ही इस केस को ख़त्म कर दूंगा, और वो भी जड़ से। मैं अपने आप को सिर्फ तुम्हारे लिए रखा है, अपने जज्बात, अपनी मोहब्बत, हर चीज़ तुम्हारे लिए। अगर मैं मर भी गया तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये मत सोचना कि मुझे मौत से डर लगता है। खैर क्या खाओगे तुम? चलो आज मेरी पसंद का कुछ ट्राई करते हैं। वो वेटर को ऑर्डर देते हुए बोला। मुझे भूख नहीं है,
مجھے ہاسٹل جانا ہے۔ اس پاگل کے ساتھ دماغ کھپانے سے وہ واپس جانا بہتر سمجھ رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ آرام سے، تم یہاں اپنی مرضی سے آئی ہو لیکن جاؤ گی میری مرضی سے، وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا تو اسنیہا سہم کر پھر سے بیٹھ گئی تھی۔ آپ پرسکون ہو کر مجھے بتاؤ کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ طلاق کے پیپر لے کر میرے پاس کیوں آئی ہو؟ کیا چاہتی ہو پہلے میں سائن کروں؟ اب وہ مدعے کی طرف آیا تو اسنیہا نے ایک ٹھنڈی سانس لی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرے بابا کہتے ہیں مجھے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ میرے بابا کا کہنا ہے کہ آپ برے انسان نہیں ہیں، لیکن مجھے ان کی بات میں کچھ بھی سچائی نہیں لگتی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو آپ کی دلکش مسکراہٹ واضح ہوئی۔ یقیناً اس کی بات نے اسے لطف دیا تھا۔ تو کیا اب تم اس برے انسان سے طلاق چاہتی ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ اسنیہا کو جواب میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ میں اپنے بابا کی بات پہ یقین کرنا چاہتی ہوں، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ تو آپ کو لگا جیسے اس کی زندگی مل گئی ہو۔ وہ بے ساختہ ہی اس کا ٹیبل پر رکھا ہوا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ بالکل بے فکر ہو جاؤ، پیپرز پر اپنا خوبصورت نام مت لکھنا، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا، لیکن اگر پھر بھی سائن کرنے کا بہت شوق چڑھا ہے تو میرا دل حاضر ہے، سہاگ رات پر جتنے چاہے سائن کر لینا، وہ بے حد بے باکی سے اسے بولا۔ اسنیہا کی تو کانوں کی لو تب بھی سرخ ہو گئی تھی۔ لنچ آ چکا تھا سر، اس کے اشارے پر اس نے زندگی میں پہلی بار اس کی پسند کا کھانا کھایا جو کافی اچھا تھا۔ وہ کھانا چھوڑنے لگی تب تو آپ کی ایک اور دھمکی سے ملی تھی، اگر تم نے کھانا ادھورا چھوڑا تو میں یہیں بٹھا کر تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ میرا ہو گیا، میں نے کھانا کھا لیا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ یقیناً ڈر تھا کہ کہیں وہ اسے زبردستی نہ کھلانے لگے۔ ابھی میرا نہیں ہوا تو تمہارا کیسے ہو گیا؟ چلو کھاؤ، جب تک میرا ختم نہیں ہوتا تب تک تم بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کے اپنے ہی اصول تھے۔ اسنیہا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ لنچ کے بعد وہ اٹھنے لگی تو تراب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں خود چھوڑ کر آؤں گا، آتے ہوئے کیسے آئی ہو؟ وہ اس کے ساتھ اٹھتے ہوئے ٹیبل پر رقم رکھتا باہر نکلا تھا رکشے سے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامنے پر آگے پیچھے ہر طرف دیکھتی اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تمہارے گھر کا کوئی بھی جاسوس یہاں پر موجود نہیں ہے، تو اتنی کیوں ڈر رہی ہو؟ ویسے اس طرح سے ڈرتی ہوئی کافی کیوٹ لگتی ہو۔ اسے باہر لے کر آتا وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ روحان جاگ چکا تھا، وہ اب بالکل ٹھیک تھا۔ زیار اور شیر سے مل کر وہ بے حد خوش تھا۔ شیر نے اسے بتایا تھا کہ اس کی بے ہوشی کے دوران وہ پہلے بھی آ چکے ہیں اور تب اس کے ساتھ پاکیزہ بیگم بھی تھی۔ پاکیزہ بیگم کو یاد کر کے وہ بری طرح سے رونے لگا۔ وہ پاکیزہ بیگم سے اپنے الفاظ کی معافی مانگنا چاہتا تھا۔ شیر نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اگلی بار پاکیزہ بیگم کو ساتھ لے کر آئے گا، لیکن اس وقت وہ اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ اسے اسپیشل سیکیورٹی دی گئی تھی۔ اس کی طبیعت ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی تھی، جبکہ اس کی جان کو اب بھی خطرہ تھا۔ 2 لوگوں میں سے ایک آدمی کو پکڑ لے کر گیا تھا جو کہ فی الحال کوئی بھی نام نہیں لے رہا تھا، جبکہ دوسرا آدمی بھاگ چکا تھا۔ ابھی تک عالم نے کھل کر کسی کا نام نہیں لیا تھا۔ شاید امید تھی کہ وہ آ کر اس سے معافی مانگیں گے، شاید وہ کہیں گے کہ وہ بہک گئے تھے یا ان سے غلطی ہو گئی تھی، اس لیے عالم کی طرف سے فی الحال صرف خاموشی تھی۔ تو راب نے تو اس سے کہا تھا کہ وہ صاف نام لے کر اس شخص کو اپنے کیے کی سزا دلوائے، لیکن عالم اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ اس شخص کے ساتھ اس کا بہت گہرا رشتہ تھا جو اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ تو راب کو عالم پر بہت غصہ آیا تھا کہ اگر اس شخص نے اس رشتے کی فکر نہیں کی تو عالم کیوں کر رہا تھا؟ وہ شخص عالم کی جان لینا چاہتا تھا اور عالم ابھی تک اپنے اور اس کے رشتے کے احترام میں خاموش بیٹھا تھا۔ دادا جان آپ سب جائیں، اب آرام کریں، میں ٹھیک ہوں، میری وجہ سے آپ لوگوں کو اتنی زیادہ پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف دینا تو اسے سیکھا ہی نہیں تھا۔ گھر کے تقریباً سبھی لوگ یہاں اسپتال میں آئے ہوئے تھے اور ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ صرف ایک ہی انسان اس کے ساتھ رک سکتا ہے۔ دادا جان تو اس عمر میں کہہ رہے تھے کہ انہیں عالم کے ساتھ رکنا ہے، لیکن پھر فیصلہ ہوا کہ تراب ہی ان کے ساتھ رکے گا۔ نہیں، آج کی رات تراب کو بھی آرام کرنے دیں، وہ اتنے دنوں سے یہاں بے آرامی میں رہ رہا ہے، آج میرے ساتھ نین رکے گی۔ وہ جو کب سے خاموش کھڑی تھی ان کو سن رہی تھی، اپنے نام پر سر اٹھائی حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی، جیسے اس نے کوئی ناممکن سی بات کر دی ہو۔ نین کیسے رکے گی اکیلی، کیسے سنبھالے گی یہ سب کچھ؟ لڑکی ذات ہے، کہاں کہاں بھاگے گی، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ نسرین بیگم اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی، مجھے صرف میری بیوی کی ضرورت ہے، آپ لوگ بے فکر ہو جائیں، وہ سنبھال لے گی، یا پھر میں سنبھالنے کے لیے تو لوگ بہت یا میں سنبھالنے کی نوبت ہی نہیں آنے دوں گا، اسے میرے پاس چھوڑ جائیں، وہ فیصلہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ تو نین اس کی بے باکی پر شرمندگی سے سر بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ کیسا بے شرم شخص تھا، سب کے سامنے کتنی بے باکی سے کہہ رہا تھا کہ اسے صرف اس کی بیوی کی ضرورت ہے۔ اسے تو سب کے جانے کے بعد ٹھیک کرنے کا سوچ رہی تھی، تو آپ کے اچانک آ جانے کی وجہ سے نین اس کی نظروں سے اوجھل ہوئی تھی کہ وہ واپس کمرے میں نہ آئی تھی، اور اب وہ صرف اسی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، اسی لیے زبردستی سے روک لیا۔ جبکہ روحان کے ساتھ بھی کسی نہ کسی کا ہونا ضروری تھا، تو یقیناً کوئی نہ کوئی روحان کے ساتھ یہاں رہنے والا تھا۔ شاید واسف چاہتے تو اسے نین کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یقیناً وہ سنبھال لیں گے۔ اس کی ضد پر سب نے نین کو یہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کے اندازے کے مطابق واسف چاچو بھی یہیں رہنے والے تھے۔ وہ انہیں کمرے میں چھوڑ کر جانے سے پہلے دانین کو کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو دوسرے کمرے میں ان کے پاس آئے، پریشان ہونے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہاں پر اکیلی نہیں ہے۔ انہیں پا کر دانین کافی بے فکر ہو چکی تھی، جبکہ اب ارادہ 2 ہاتھ عالم کے ساتھ کرنے کا تھا، لیکن اس سے پہلے سے صنم کی بات کرنی تھی، اس کے لیے ان لوگوں کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ جبکہ اسے جاتے دیکھ کر عالم نے اسے گھورا تھا۔ گھور کیوں رہے ہیں؟ نہیں جا رہی ہوں گھر، یہاں باہر جا رہی ہوں، ابھی آتی ہوں۔ اس کے گھورنے پر وہ اسے شرم دلاتے ہوئے بولی، لیکن وہ آنکھ دبا کر اسے جلدی آنے کا کہتا، اسے مزید شرمندگی
शर्मिंदा कर गया था। बोलो क्या बात करनी है, वो एहसान जताते हुए अंदाज में रुकी थी। मुझे आपको थैंक यू बोलना है, वो उसे देखते हुए कहने लगी तो सनम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। थप्पड़ मारने के लिए वो मुस्कुरा रही थी। मैं जानती हूँ आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, क्योंकि आपको पता था कि आलम मुझे तकलीफ में नहीं देख पाएंगे, वो यकीन से बोली। और मुझे भी पता है कि आलम तुम्हें तकलीफ में नहीं देख पाएंगे। मैंने आलम से सच्ची मोहब्बत की थी तानीन, और आज से नहीं बचपन से। इन्हें पाने के लिए मैंने ऐसी बहुत सारी उल्टी सीधी छोटी मोटी बुरी हरकतें करती रही थी, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। ये बात मैं बहुत पहले समझ चुकी थी, लेकिन मोहब्बत को हासिल करने की कोशिश ना करना भी मोहब्बत की नाकामी है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मोहब्बत को नाकामी हो जाए, इसलिए पहले मैं कोशिश करती रही कि तुम किसी भी तरह आलम की निगाहों में ना हो, लेकिन तुम इनके निकाह में थी। अल्लाह ने तुम दोनों का जोड़ दिया था, तो मैं कौन होती थी तोड़ने वाली। फिर भी कोशिश करती रही कि हो सकता है मेरी दुआएं सुनी जाए। लेकिन कुछ दिन पहले आलम ने मुझे कहा कि अपने वालिदैन को नाराज़ करके मैंने एक बहुत अच्छे शख्स को ठुकरा दिया है, जो यकीनन मेरी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ लाने वाला था जो आज जन्म की ज़िंदगी में है। अपनी बहन को खुशमतमीन देकर मुझे अपने आप पर तरस आने लगा है। मैं बहुत खुदगर्ज हो गई थी, सिर्फ साई के पीछे भाग रही थी। आलम की बीमारी के दौरान भी मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा रवैया रखा। मुझे तुमसे माफ़ी भी मांग लेनी थी, मुझे तुमसे माफ़ी भी मांगनी थी। और आप जब तुम आलम के निकाह में इस घर में बेमोल वहसियत होकर रह गई थी, तब भी मेरा रवैया तुम्हारे साथ बेहद बुरा था, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मुझे कोई सज़ा नहीं दी, यहाँ तक कि बददुआ भी नहीं दी थी। लेकिन आज मैं तुमसे कहती हूँ, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना कि मुझे अल्लाह हिदायत दे। मैं गलत रास्ते पर निकल चुकी थी, मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखाए, और प्लीज़ मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर देना। मैं सच में शर्मिंदा हूँ तुम्हारे साथ की बदसलूकी के लिए, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। वह इसका हाथ थामते हुए बोलते उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। ताने ने प्यार से अपने साथ लगाया था। जिसने आपको आपकी गलती का एहसास दिलाया है, आपको सीधा रास्ता भी वही दिखाएगा और हिदायत भी देगा। बस अपनी गलतियों के लिए अपने वालिदैन से भी माफ़ी मांग ले। वो बेहद नरमी से बोलते सनम मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया था, क्योंकि वो नहीं कह सकती थी कि इसकी तबीयत की खुदगर्जी इसके खून का हिस्सा है। गोलगप्पे पसंद है ना तुम्हें? यहाँ एक पास ही गोलगप्पे का स्टॉल है। क्या ख्याल है? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। आहो, तुमने भी तो मेरी पसंद का लंच किया है। मुझे हॉस्टल जाना है, वो जल्दी से बोली थी। मैं कोई बेकार बात कर रहा हूँ? नहीं ना, तो तुम क्यों फजूल बातें कर रही हो? जो सवाल पूछ रहा हूँ इसका जवाब दो। बताओ, पर यहाँ पास वाले स्टॉल पर चलना है या दूर कहीं लेकर चलूँ? वैसे दूर जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, तो डेट भी हो जाएगी। इसके अंदाज में शरारत ही शरारत थी। स्नेहा इसे देखकर इल्तिजा करते हुए नाम में सर हिलाने लगी। क्या बहुत ही बोरिंग किस्म की इंसान हो तुम। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा कब तो मेरी ज़िंदगी में आओ और मुझसे फरमाइशें करोगी, नखरे उठाओगी। तुम तो खुलकर बात भी नहीं कर रही। ऐसे कैसे चलेगा यार? चलो कोई बात नहीं, छोटी सी डेट ही मार लेते हैं। ऐसा करते हैं, हम अपनी डेट का एक प्यारा सा नाम भी रख लेते हैं, गोलगप्पे डेट। कैसा है? मुझे पता है बहुत अच्छा है। इसके कुछ भी बोलने से पहले ही वो बोल पड़ा था और कुछ ही फासले पर जाकर एक जगह गाड़ी रोककर एक इंसान को अपनी तरफ बुलाया। जल्दी से गोलगप्पे की प्लेट लेकर आओ, और सुनो, चटनी ज़्यादा डालना और पानी ज़्यादा तीखा करना। मेरी बेगम को फीके गोलगप्पे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो ऑर्डर देते हुए इसे पैसे देने लगा। जबकि स्नेहा इसे सुन रही थी। वो ये सब कुछ कैसे जानता था? यकीनन इसने तो तुक्का लगाया होगा। अब फीके गोलगप्पे तो किसी भी लड़की को पसंद नहीं होते। वैसे शादी के बाद हम हर हफ्ते डेट करेंगे, लेकिन याद रखना कि डेट के बाद भी कुछ असूल होते हैं जिनमें मैं किसी किस्म के नखरे बर्दाश्त नहीं करता। गोलगप्पे आ चुके थे और यकीनन अब इसे खाने थे। अगर वो नहीं खाती तो ये शख्स इतनी आसानी से इसकी जान नहीं छोड़ने वाला था। और यहाँ आई ही क्यों थी, यही सोचकर वो पछता रही थी। कौन सी असूल? वो एक गोलगप्पा खाते हुए पूछने लगी। तुम सच में बच्ची हो या मेरे सामने बच्ची बनती हो? कम ऑन यार, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वो बेसाख्ता बाकी से बोला तो स्नेहा का गोलगप्पा इसके गले में अटक गया था। अरे शहजादी, क्या हुआ? गले में अटक गया? मैं तो सिर्फ रूल बता रहा था डेट का। मैं कौन सा तुम्हें किस करने का बोल रहा था? वैसे पानी का गिलास पकड़ा था, इसी अंदाज में बोला था आप मुझे हॉस्टल छोड़ दें। आप वो इल्तिजा कर रही थी। यार अभी से तुम्हारा ये हाल है, मैं सोच रहा हूँ शादी के बाद तुम्हारा क्या हाल होगा। वैसे मेरी सांसों की बहक को काफ़ी अच्छे तरीके से महसूस कर चुकी हो। अब ये घबराना शर्माना मुझे कुछ फजूल लगता है। वो अभी ऐसे ही हालात में जब हमें तन्हाई में बहुत सारे लम्हात मैसर हो चुके हैं। एक बात बताओ, क्या तुमने कभी तन्हाई में मेरे बारे में नहीं सोचा? जैसे कि मैं तुम्हें कितना अच्छा लगता हूँ, मेरे पास आना तुम्हें कितना अच्छा लगता है, मेरा छूना तुम्हें कितना अच्छा लगता है, या मेरे छूने पर तुम कैसा महसूस करती हो? वो नॉन स्टॉप बोले जा रहा था। मैं आपके बारे में सोचती हूँ, बेशक सोचती हूँ, लेकिन इतना फजूल नहीं सोचती। वो पूरी ईमानदारी से बोलते हो तो आप कहकर लगाकर हंसा था। फिलहाल मैं तुम्हें अपने बारे में किसी भी किस्म की फजूल सोचने में भी नहीं देना चाहता, क्योंकि डार्लिंग मैं तुम्हारी सोच से ज़्यादा फजूल शख्स हूँ। वो आंखें दबाता आहिस्ता से आवाज़ में बोला था। स्नेहा शिद्दत से इस सफ़र के ख़त्म होने का इंतजार कर रही थी। जब वो बोला, यहाँ से कुछ फासले पर एक लवर पॉइंट है, क्या ख्याल है तुम्हारा? अल्लाह का सवाल है, मुझे मेरे हॉस्टल छोड़ दें। मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर। वो हाथ जोड़ते हुए बोली थी। तुम्हें पता है, इस वक्त तुम्हारे अलावा कोई और लड़की मेरे साथ होती तो खुद को कितना खुशकिस्मत महसूस करती। एक तुम हो, इंतहा की बोरिंग इंसान। देखो, शादी के बाद मैं ये नखरे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे एक बहुत ही प्यारी स्वीट सी मेरी सारी बातें मानने वाली बीवी चाहिए, और मैं एक बहुत ही रोमांटिक पर्सन हूँ, तो मुझे मेरी बीवी भी रोमांटिक चाहिए और ये रोमांस करने वाली चाहिए। हर बात पे नो नहीं महंगा पड़ सकता है तुम्हें। वो वार्निंग दे रहा था।
तो फिर आप किसी और से शादी कर लें, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। इसकी धमकी पर इसका जवाब फ़ौरन से आया था, थैंक यू सो मच इजाज़त देने के लिए, लेकिन इसके बारे में फ्यूचर में सोचूंगा, फिलहाल जो है इसी पर गुजारा कर लूँगा। वो मुस्कुराता हुआ इसका हाथ अपने हाथ में थाम कर आहिस्ता से इसके हाथ को फिर से अपने लबों से छूने लगा। तुराब नहीं प्लीज़। इसकी जान हवा होने लगी थी। फिर नहीं, तुम्हें एक ज़रा सी बात समझ में नहीं आती, तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज़ मुझे जहर लगता है, लेकिन अपना नाम बहुत मीठा लगता है, एक बार फिर से मेरा नाम लो। वो इसका हाथ खींचकर इसे अपने बेहद करीब कर चुका था। वो हैरानगी से कभी इस पागल शख्स को तो कभी आगे पीछे सरकू को देख रही थी, जो सिर्फ इसकी एक मुलाकात पर इसकी हालत खराब कर रहा था। शादी के बाद इसका क्या करता, या अल्लाह ये सफ़र जल्दी खत्म हो। इसने शिद्दत से दुआ मांगी थी, जो थोड़ी ही देर में पूरी भी हो गई थी। नैन, यहाँ आकर बैठो ना मेरे पास, गोली लगने की वजह से मेरी दूर की नज़र कमज़ोर हो गई है। पास आकर बैठो यार, यहाँ से तो मुझे ठीक से तुम्हारे मुंह के जाविये भी नज़र नहीं आ रहे। वो 10 बार से अपने पास बुला चुका था, जबकि वह सोफे पर बैठी हाथ में कोई मैगजीन पर बेवजह ही देखे जा रही थी, जबकि सारा ध्यान इसी की तरफ था। कोई बात नहीं, आपकी गोली का इलाज हो जाएगा, बाद में आपकी आंखों का भी इलाज करवा देंगे। हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, यहाँ हर बीमारी का इलाज है। वो इत्मीनान से बोली थी। हाँ तो ठीक है ना, मैं कौन सा पास बुला रहा हूँ, मैगजीन सीधी करके पढ़ो। वो ऑफ मूड के साथ बोला, जिस पर दारेन का ध्यान फौरन अपने मैगजीन पर गया था, जिसके हाथ में इसने उल्टा पकड़ के रखा था। इसने जल्दी से सीधा किया, दूर से मैं नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैगजीन उल्टा है ये नज़र आ रहा है। वाह भाई वाह, कितनी कमज़ोर नज़र हो गई है आपकी। वो इसकी नज़र पर चोट करते हुए बोली तो आलम दिलकशी से मुस्कुराया था, जबकि ज़रा सा उठने की कोशिश में एक दर्दनाक इसके ज़ुबान से निकली थी। तनेन भागते हुए इसके पास आई थी। आलम क्या हुआ, आपको दर्द हो रहा है, आप उठे ही क्यों, डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। परेशानी से इसके करीब से उठकर बाहर भागने लगी, जब आलम ने इसका हाथ थामकर इसे अपनी जानिब खींचा था। डॉक्टर की नहीं, तुम्हारी ज़रूरत है बेवकूफ़, जो इलाज तुम कर सकती हो वो डॉक्टर नहीं कर सकता। वो इसका चेहरा अपने हाथों में थाम इसके लबों को अपने लबों की दस्तर में ले चुका था। वो कुछ भी ना बोल पाई थी, लेकिन इससे दूर रहने की पूरी कोशिश कर रही थी, ताकि इसके टच होने से इससे तकलीफ ना हो। लेकिन न जाने इसके सर पर क्या भूत सवार था, वो इसे अपने बिल्कुल करीब करता इसे खुद से लगा चुका था। दोनों में 1 इंच का भी फासला ना था। आलम, आपको दर्द होगा। वो इसके होंठों को बख्शता इसे अपने सीने से लगा चुका था। तुम्हारे पास आने से मुझे दर्द नहीं होता, सुकून मिलता है, तुम दूर मत जाया करो। वो इसे अपने सीने से लगाए बेहद चाहत से बोला। इसके होंठों आहिस्ता आहिस्ता इसकी गर्दन के तरफ जा रहे थे। आलम, दर्द होगा ना आपको, वो पीछे हटते हुए समझाने लगी, लेकिन इसके घूरने पर खामोश होकर नसें झुका गई। पास आओ, वो घूरते हुए बोला था। आलम, आप समझते क्यों नहीं है, आपको पता है लोगों को गोलियां लगती हैं ना, वो सुकून से चंद दिन आराम करते हैं, आपकी तरह फरमाइश नहीं करते। वो उसे समझाते हुए बोली थी। और जिनके शोहर को गोलियां लगती हैं ना, इनकी बीवियां इनकी हर फरमाइश पूरी करती हैं। इस तरह दिमाग खाना, इसलिए दिमाग खाना बंद करो और मेरे पास आओ। पास ही तो सिर्फ 1 इंच का फासला है आपसे, वो भी आप बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो घूर कर रह गई इसकी बेबाक फरमाइश पर। मुझे तुम्हारी दिल को किस करना है, वो इसकी गर्दन पर मुझे छोटे से दिल को देखते हुए बोला। तो वह घबराकर पीछे हटने लगी, मगर अपनी कमर पर इसका बाजू महसूस करके वहीं रुक गई। आलम, इंसान बन जाए, अल्लाह का वास्ता है। आप सुने, हालत देखें, आपकी हालत देखकर कोई कह सकता है जिस इंसान को 2 गोलियां लगी हैं वो अस्पताल के बेड पर अपनी बीवी के साथ ऐसी हरकतें करके सुकून महसूस कर रहा है। वो परेशानी से देखते हुए बोली, जिस पर आलम मुस्कुराया था। देखो नैन, तुम्हें पता है इस वक्त मैं कितनी तकलीफ में हूँ, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए और तुम फजूल की बहस कर रही हो। वैसे देखते हुए शर्म दिलाने वाले अंदाज में बोला, तो वैसे घूर कर रह गई थी। मुझसे किसी किस्म की मदद चाहते हैं आप, वो बेयकीनी से पूछ रही थी। मुझे मूविंग में तकलीफ हो रही है तो खुद मेरे पास आओ, और अब तुम अपने इतने प्यारे शोर की एक छोटी सी फरमाइश तो पूरी कर ही सकती हो। कौन सा तुम्हें आसमान से तारे तोड़ कर लाने के लिए कह रहा हूँ। चलो, मैं तो बस प्यार से दिल को अपने लब्बों से छूना चाहता हूँ। एक छोटी सी फरमाइश जो मैं तुमसे पहली बार कर रहा हूँ, इस कंडीशन में तुम्हें तो अच्छी बीवी का फर्ज निभाते हुए मेरे कदमों में बैठ जाना चाहिए, और तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। वो अफसोस करते हुए बोला था। इसके बाद आप मुझे छोड़ देंगे। वो हार मानते हुए सवाल करने लगी। आलम ने फौरन हाँ में सर हिलाया था। तुम्हें किस, तो मैं वैसे भी कर लूँगा, तुम ही मेरे दिमाग में ये फजूल की फरमाइशें डाल रही हो। ये सब छोड़ो, मेरी फरमाइश पूरी करने के बारे में सोचो। वह भरपूर डीपपन का मुजाहिरा करते हुए बोला। मेरा मतलब है कि आप मेरे साथ फजूल की कोई भी फरमाइश नहीं करेंगे। इसके बाद वो शर्त रखते हुए बोली। आलम थोड़ी देर सोच में पड़ गया। तुम्हें किस गधे ने कहा कि ये फजूल की फरमाइश है, ये मेरी जायज़ फरमाइश है, इसने घूरते हुए कहा था। नैन को लगा कि शायद वो इसकी बात को समझते हुए हाँ करेगा, लेकिन इसने तो आगे से एक और फतवा लगा दिया था। आलम, मेरा मतलब है कि इसके बाद आप आराम करेंगे और अपने आप पर थोड़ा सा रहम खाएंगे। वो समझाते हुए आसान अल्फाज में बोली थी। रहम खाने का क्या फ़ायदा जब मेरी बीवी को मुझ पर तरस नहीं आता। वो बेहद अफसोस से बोला था, जिस पर नैन ने अपना हाथ जोर से अपने सर पर मारा था, जो ज़रूरत से ज़्यादा ही ज़ोर से लग गया था। बेवकूफ़ लड़की, क्यों मार रही हो अपने आप को, तकलीफ दी अपने आप को तो हाथ काट कर दूसरे हाथ में रख दूंगा। वो गुस्से से सख्त लहजे में बोला था। इसके अंदाज पर नैन बिना कुछ बोले ज़रा सी ऊपर हुई और अपनी आंखें बंद कर ली, जिसका मतलब समझकर आलम फतेहाब अंदाज में मुस्कुराया था। वैसे इतनी भी बुरी नहीं हो जितनी बनती हो। इसके शाने पर हाथ रखकर आलम आहिस्ता से इसकी गर्दन पर झुका। इसके लबों का लम्स अपनी गर्दन में महसूस करते ही वो पीछे हटी थी और फौरन इससे उठकर दूध सोफे पर जाकर बैठी थी। और आलम फिर से लेट गया। अब आप आराम से सो जाएं प्लीज़ आलम, आपकी ये फरमाइश आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो समझाते हुए बोली थी। तुम
यहाँ मेरे पास आकर सो, हम दोनों एक साथ मिलकर सोते हैं, तो मैं बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा। वो वादा करते हुए बोला था। हाँ, आपको तो जानती ही नहीं हूँ, आराम से आंखें बंद करके सो जाए, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। रोहान दादा के कमरे में, वहाँ से चाचू को यहाँ भेज दूंगी, फिर करते रहना इनके साथ फजूल किस्म की बातें। वो धमकी देते हुए बोली थी। नहीं, ऐसा मत करना, मैं इनकी शक्ल सारी रात नहीं देख सकता। वो ऐसा तकिए पर रखते हुए बोला था। इतनी भी बुरी शक्ल नहीं है, माशाल्लाह कितने प्यारे दिखते हैं। नैन ने इसकी बात का गलत मतलब निकाला था। हाँ, इनकी शक्ल तो बहुत प्यारी है माशाल्लाह से, लेकिन इनमें मुझे मेरी बीवी नजर नहीं आती, और यकीन करो इन्हें देखकर मुझे कोई रोमांटिक फीलिंग भी नहीं आती। इसका जवाब एक बार फिर से बेबाकी से भरपूर था। ताने ने अपना कम्बल खुद पर ठीक करती अगले ही लम्हे पूरी तरह से कम्बल में चुपकर सोफे पर लेट गई थी। इसी सोफे पर वो काफी आसानी से पूरी आ चुकी थी। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब इसे अपने लबू के बाद अपनी गर्दन पर इसका लम्स महसूस हुआ। पहले तो इसका बेकार देने वाला लम्स पर मुस्कुराकर इसके गिर्द अपनी बाहें फैला गई, लेकिन वक्त के साथ साथ इसे बंद आंखों के पीछे से खून के धब्बे नजर आने लगे थे। इसने ज़ियार को गैर महसूस अंदाज में खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वो तो जैसे पूरी तरह से बहक चुका था। इसकी मज़ाहमत करते हाथों को अपने हाथों में कैद किए इसे अपनी पनाहों में समेटता इसकी सारी मज़ाहमतें नजरअंदाज कर गया। वो बहुत कोशिश के बावजूद भी इसकी बढ़ती हुई बेबाकी को रोक ना पाई थी। वह खामोशी से इसकी जसारत महसूस करती खामोशी से अपना आप इसके हवाले कर गई थी। तुम अभी तक सोई नहीं? वो कमरे में आया तो लाली को किताबों में सर खपाता देकर पूछने लगा। इसे पढ़ते देखकर इसे हमेशा ही बहुत खुशी होती थी। अब तो इसके पेपर भी बिल्कुल करीब थे। नहीं, बस सोने ही वाली थी, आपका इंतजार कर रही थी, सोचा एक बार फिर से पढ़ लूं। इसने मुस्कुराते हुए आज फिर शेर की मुछू को छूने की कोशिश की थी, जहाँ एक बाल इसे काफी दिनों से तंग कर रहा था। इसकी खूबसूरत मुछू पर एक इकलौता बाल अलग इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लाली डोंट। वो इसका हाथ पीछे करता आराम से बेड पर लेट गया था। जकूटा जिन, वो अकेला है बेचारा, रोज मुझसे कहता है प्लीज मुझे मेरी फैमिली से मिलवा दो। वो मासूमियत से इसके सीने पर सर रखते हुए बोली तो शेर मुस्कुरा दिया था। इसे अकेले ही रहने दो, कोई जरूरत नहीं है इसकी फैमिली से मिलवाने की। इसे अपनी बाहों में कैद किए इसने के बाल से हिलाते हुए आंखें बंद कर चुका था। लाली ने सर उठाकर इसकी चेहरे की तरफ देखा, जहाँ वो बाल फिर से इसे देखकर फरियाद करने लगा। जैसे नजरबंदाज करते इसने आहिस्ता से शेर के गाल पर अपने लब रखे तो शेर के लबों की तराश पर मुस्कुराहट खूबसूरती से चमकी थी। क्या बात है, मेरी जाना को आज बहुत प्यार आ रहा है मुझ पर। वो ऐसे ही आंखें बंद किए बेहद मोहब्बत से मुस्कुराते हुए बोला, जब इसके लब अपने दूसरे गाल पर महसूस हुए। कहते हैं अगर शोर अच्छा मिले तो कभी कभी प्यार कर लेना चाहिए। इसने बेतुका लॉजिक देते हुए इसकी थोड़ी पर अपने लब रखे थे। लाली अब ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। वो इसकी बेबाकी पर बोले बिना न रह सका था, अभी तो इससे भी ज़्यादा होगा। मेरी चमक चलो, वो लोफराना अंदाज में कहती इसे हंसने पर मजबूर कर गई। जब बग रही लम्हे इसके होंठ इसे अपनी मूछों पर महसूस हुए। इसके बाद जो दर्द इसने महसूस किया इससे वो तरफ उठा था। लाली ये क्या बेवकूफ़ी है, क्या किया है तुमने? वो इससे खुद से पीछे करता उठ बैठा था, जबकि लाली बड़े फख्र से अपने हाथ में इसका नन्हा सा मूछ का बाल पकड़े देख रही थी। मुझसे इस मासूम का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब आप बताएं, इसे एल्फी से वापस लगा दूं या संभाल कर अंदर रख दूं? वह बाल देखते हुए बोली। शेरबाज इसे घूर कर रह गया था। तुम्हें तो बताता हूँ मैं, इसके दर्द का बहुत ख्याल है तुम्हें। अब जो दर्द मुझे दिया है इसका अंजाम भुगतो। वो इसे पकड़कर एक ही झटके में बेड पर फेंक चुका था, जबकि शेर इसके दोनों बाजू अपने हाथों में कैद करता इसके लबों की नरम आहट को अपने लबों से महसूस करने लगा, जिससे वो और कुछ हो ना हो लेकिन इसके बाल की तकलीफ जरूर कम हुई थी। इसके शिद्दत भरे अंदाज पर लाली ने जरा सी मज़ाहमत की, जिसे वह सिरे से नजरअंदाज करता अपनी जिसारतों को एक नई दास्तान लिखता चला गया था, जबकि लाली इसकी बाहों में पिघलती खामोशी से इसे महसूस किए जा रही थी। किसी चमकती चीज़ को इसने अपनी तरफ आता महसूस कर लिया था। शायद वो ये समझ भी चुका था कि कौन है। इस शख्स का हाथ कांप रहा था, जबकि इसके हाथ में चाकू भी बुरी तरह से कांप रहा था। आलम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये वाकई ही आसान नहीं था, किसी के लिए भी ये बहुत मुश्किल काम था। शायद वो देख नहीं सकता था कि आलम जाग रहा है। वो पूरी आंखें खोले शख्स को देख रहा था, जो आहिस्ता आहिस्ता इसकी जानिब आ रहा था। वो किस मकसद के लिए आ रहा था वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था, लेकिन आज वो रिश्ते के एतबार से आखिरी इंतहा तक जाना चाहता था। क्या वो शख्स ऐसा कर सकता है? क्या इसका काम ताहाती से ऐसा करने पर मजबूर कर सकता है? वो इसके बिल्कुल करीब आकर रुका। इसने वार्न करना चाहा तो आलम खामोशी से पड़ा रहा। इसका दिल कहता था कि वो शख्स इतना नहीं गिर सकता। वो जानता था इस पर गोलियां इसने बौखलाहट के शिकार में चलाई थी। वो इसे मार नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वो मारने की हद तक चला गया था। वो यहाँ इसे मारने के लिए ही आया था। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसने चाकू ऊपर करते हुए इसके सीने तक पूरे जोर से चलाने की कोशिश की, लेकिन नहीं चला पाया। इसका हाथ बुरी तरह से कांप रहा था। इसने एक और कोशिश की और फिर से नाकाम हुआ। शायद इसका ज़मीर इसे इजाज़त नहीं दे रहा था। एक और कोशिश करे चाचू। अगर आपको लगता है कि आलम सुल्तान शाह तुराब हैदर शाह का हक मार सकता है तो पीछे मत हटें। अगर आपको लगता है कि मैं आपके बेटे की राह में रुकावट हूँ तो मार दें मुझे फिर भी आपसे कोई गिला नहीं होगा। तुराब मेरे लिए मेरा छोटा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा हमराज है, मेरे हर दुख का साथी है। इसका हक मारकर मैं वैसे भी नहीं जीत सकता। मैं नहीं जानता कि आपको कब ये लगा कि मैं इसका हक छीन लूँगा। शायद जब दादा ने सारी जायदाद मेरे नाम करने का फैसला किया, या इस जायदाद के 3 हिस्से बनाने का फैसला किया। ये हकीकत है, इस सारी जायदाद पर सिर्फ मेरा हक नहीं है, ये तुराब और रोहान की भी है।
मैं जानता हूँ कि आप हमेशा से ये समझते हैं कि मैं तुराब को अपने नीचे लगाना चाहता हूँ या इसे खुद से कम साबित करने की कोशिश करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चाचू हमेशा से मेरे बराबर खड़ा है, बस आपकी नज़रों में फ़र्क है और कुछ फ़र्क नजर चाची की नज़रों में है जो आपको गलत तरीके से दिखाती हैं। और जहाँ तक रोहान की बात है, रोहान भी इस जायदाद में अपना मुकम्मल हिस्सा रखता है, वो भी इस खानदान का वारिस है। मैं रोहान का हिस्सा नहीं, लेकिन अपने हिस्से की सारी जायदाद तुराब के नाम करने को तैयार हूँ। आप बस इससे पूछ लीजिए कि वो मेरे हिस्से का कुछ लेना पसंद करेगा। इसका जवाब नहीं होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि पैसा, दौलत, जायदाद, शोहरत, ये सब कुछ इसे कभी भी नहीं चाहिए। इसे हमेशा से आपकी तवज्जो चाहिए थी जो आप इसे कभी नहीं दे सके। आप अब तक यहाँ जो कुछ भी हुआ इसमें मुझे आपकी कोई गलती नजर नहीं आई। मैं जानता हूँ और रोहान को मारने के पीछे मास्टर प्लानर महराज था। वो वासिफ चाचू और सफदर चाचू से अपना इंतकाम लेने के लिए इन दोनों से रोहान को छीन लेना चाहता था, जिसमें आपको अपने साथ मिला लिया था कि रोहान और मैं मारे जाएं और सारी जायदाद तुराब के नाम हो जाए। लेकिन आपने कभी सोचा सबके बात क्या वो अब ये सब कुछ कबूल करेगा? नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा तुराब के बारे में? क्या इन सब चीज़ों के बाद वो ये सब कुछ कबूल करेगा? नहीं चाचू, तुराब को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसे हमेशा से आपकी ज़रूरत थी। तुराब ने 7 साल की उम्र में अपनी माँ को बुरी तरह से मारते पीटे हुए देखा था। इस वक्त एक 7 साल के बच्चे का दिमाग इतना काम नहीं कर सकता कि वो ये समझ सके कि इसकी माँ पागल है। तुराब नहीं जानता कि इस दिन जुलेहा चाची खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी। इस दिन इसने आपको अपनी माँ को मारते हुए देखा था। वो नहीं समझ पाया इसकी माँ किस तरह से मरी थी। बस इसने अपनी माँ की तरफ लाश के साथ आपको खून से भरा चाकू पकड़े हुए देखा था। इस दिन आप गलत नहीं थे चाचू, लेकिन आज आप बहुत गलत हैं। आप इतने सालों से अपने बेटे को अपने सीने से लगाने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन आज मुझे मारकर आप इसको हमेशा के लिए खुद से दूर कर देंगे। आप मुझे मार डालें, मुझे अफसोस नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये सब कुछ तुराब के लिए कर रहे हैं तो मत करें, क्योंकि मेरे बगैर ये सब कुछ वो कबूल नहीं करेगा। वो दावे से बोला था। वो जानता था कि तुराब आलम के रिश्ते को आलम वो तुराब के रिश्ते को गलत तरीके से देख रहे हैं। तुराब का इसे अहमियत देना, इसकी हर बात माना, यहाँ तक कि आलम के जूतों के तस्बे बांधने के लिए भी पीछे ना हटता। और हैदर चाचू इन सब चीज़ों को आलम की गुलामी करार देने लगे थे। उन्होंने कई बार ये बात दादाजान के सामने भी कही थी कि आलम मेरे बेटे को अपने नीचे लगाना चाहता है, इसे अपना नौकर बनाना चाहता है, जिसे इतने सालों से सुल्तान शाह और वासिफ शाह ने इन्हें बनाकर रखा है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ नज़र का धोखा था। वो इन रिश्तों को गलत नाम दे देते। आलम ने इन्हें गहरी सोच में डाल दिया था। वो कितनी ही देर अंधेरे में डूबे इस वजूद को देखने की कोशिश करते रहे, जब अचानक किसी ने पीछे से इनके कंधे पर हाथ रखा। इनके पीछे मुड़ने की वजह से इनका हाथ में मौजूद तेज़दार चाकू सामने वाले के हाथ पर लगा था। इसकी आह निकली, जिस पर फौरन तानेन की आंख खुल गई थी। तेजी से कमरे की लाइट ऑन की थी, लेकिन सामने का मंजर इसके लिए बेहद अजीब था। सामने तुराब हाथ से बहते हुए खून को नजरअंदाज करता बेहद गुस्से से अपने सामने खड़े शख्स को देख रहा था, जबकि आलम बच पर लेता तुराब को देख रहा। ये वाहिद शख्स था जिसे वो इस वक्त देखना नहीं चाहता था। जबकि हैदर शाह अपने बेटे के हाथ से बहते हुए खून को देखकर बुरी तरह से तड़प उठे थे। क्यों आए हैं यहाँ आप? आलम को मारने के लिए? आप इतने गिर सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था। ज़रा शर्म नहीं आई आपको? अपनी औलाद के साथ ऐसा घटिया काम करते हुए मुझसे मेरे सारे रिश्तों को छीन लेना चाहते हैं आप। पहले मेरी माँ को मार डाला, आप मेरे भाई को मारना चाहते हैं। वो बेहद गुस्से से आगे बढ़ रहा था। यकीनन आज कुछ ना कुछ जरूर होने वाला था। वहीं रुक जाओ तुराब, तुम्हें मेरी कसम। वो गुस्से से इनकी तरफ बढ़ रहा था जब आलम चिल्लाते हुए बोला, इसके पास और कोई रास्ता नहीं था तुराब को रोकने का। आलम तो इस घटिया शख्स के लिए मुझे अपनी कसम दे रहा है, इस शख्स के लिए जो रिश्तों में छुपा हुआ एक भेड़िया है। ये तुम्हें यहाँ जान से मारने आया था, इसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शर्म आती है मुझे इस शख्स को अपना बाप कहते हुए। तुराब का बस नहीं चल रहा था कि वो क्या कर डाले। नहीं तुराब, तुम कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। वहीं रुक जाओ, पहले मेरी बात पूरी सुन लो। वैसे समझाते हुए बोला था, चाचू से गलती हुई है, वो बहक गए थे, लेकिन इनका कसूर इतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी सजा तुम इन्हें देना चाहते हो। हर बाप अपने बेटे की भलाई सोचता है, वो भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ बेहतर सोचने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, मैं मानता हूँ इनका तरीका गलत था, लेकिन सोच गलत नहीं थी। हर बाप अपने बेटे की कामयाबी देखना चाहता है। ये तुम्हें कामयाब देखना चाहते थे। महराज ने इन्हें गलत रास्ता दिखाया और अपने बेटे के लिए वो गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गए थे, तो इसमें गलत क्या है? वो इसे समझाने की कोशिश कर रहा था, जबकि तुराब के माथे की रगें साफ कह रही थी कि वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। ताने ने जब से ये सुना था कि हैदर चाचू इसे जान से मारने के लिए थे, वो बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार हो चुकी थी। वो आलम के पास खड़ी थी, इसका हाथ थामे हुई थी, जबकि इस कंडीशन में आलम का हैदर शाह को सपोर्ट करना इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो तुमसे प्यार करते हैं तुराब, वो तुम्हें कामयाब देखना चाहते हैं, वो तुम्हें मुझसे आगे जाते हुए देखना चाहते हैं, वो तुम्हें एक बार अपने सीने से लगाना चाहते हैं, तुम्हें प्यार करना चाहते हैं। बस करो आलम, बहुत हो गया, बहुत कर ली फजूल बातें। मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ। इस जैसे कातिल की जगह हम लोगों के बीच में नहीं बल्कि जेल में है। वो इसकी बात तो पूरी तरह से गुस्सा होता अपनी जेब से मोबाइल निकालने लगा, जिस पर आलम के कुछ कहने से पहले हैदर शाह ने इसे खामोश रहने का इशारा किया था। इसे करने दो आलम, वो जो कर रहा है इसे करने दो, वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। मैं एक घटिया गिरा हुआ शख्स हूँ, मुझ जैसे इंसान की जगह तुम जैसे लोगों में नहीं है, लेकिन तुम भी मेरी बात तो सुन लो। तुराब हैदर शाह,
लेकिन तुम भी मेरी बात सुन लो तुराब हैदर शाह, यकीन तो मेरी कोई भी बात नहीं सुनना चाहते, यकीनन तुम मेरी कोई भी बात नहीं सुनना चाहते, लेकिन मैं आज तुमसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ और तुम्हें मेरी बातें सुननी होंगी। मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था, बेहद मोहब्बत, दीवानों की तरह चाहता था इसे। हाँ, ये अरेंज मैरिज थी, हमारी शादी खानदान वालों के कहने पर हुई थी, लेकिन शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि जुलेहा से अच्छी लड़की मेरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आ सकती। इसे चाहना, इसे प्यार करना, हमेशा इसके साथ रहना मेरी ज़िंदगी का मकसद बन गया था। जुलेहा मेरे सामने कुछ और थी, लेकिन घर वालों के सामने कुछ और। मुझे अक्सर कहा जाता कि वो कुछ अजीब किस्म की हरकतें करती है, अपने 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 आप से बातें करती रहती है, घंटों एक जगह बैठी रहती है, एक ही जगह देखती रहती है। मुझे इन सब बातों पे यकीन नहीं आता था। शादी के कुछ अरसे के बाद हम दोनों हनीमून पर चले गए। वहाँ जाकर इसकी कुछ हरकतें मेरे सामने भी आई थी। वो आधी रात को होटल से बाहर निकल जाती, मैं पागलों की तरह से हर तरफ ढूंढता। फिर आहिस्ता आहिस्ता घर वालों की बातें मुझे सच लगने लगी। वही सारी हरकतें मेरे सामने भी करने लगी। वो मेरे सामने बिल्कुल नॉर्मल थी, वो नॉर्मल तरीके से रहती थी। ऐसे मैं इसकी इस तरह की हरकतें मुझे परेशान करने लगी थी। हम वापस आए तो मुझे पता चला कि जुलेखा काफ़ी अर्से से मेंटली डिस्टर्ब है। जब इसके वालिद और भाई का कत्ल हुआ था वो ठीक नहीं थी। जब इसकी शादी हुई तो इसकी माँ ने हमसे ये सब बातें छुपाई थी। जब इसकी शादी हुई तो इसकी माँ ने हमसे ये सारी बातें छुपाई थी, लेकिन ये सब कुछ जानकर मैंने इसे छोड़ा नहीं, बल्कि इसका इलाज करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उन्होंने एक नज़र इसकी तरफ देखा जो यकीनन इन सब बातों से उकताया हुआ था। इसे इनकी किसी भी बात पर 1% भी यकीन नहीं था। खामोश क्यों हो गए आप? वेरी गुड, जारी रखें अपनी मनगढ़ंत कहानी। ये खत्म होगी तो मैं पुलिस को फ़ोन करूंगा। वो बिगड़ते हुए चेहरा फिर गया था। मतलब वो समझ रहा था कि इसका बाप अपना गुनाह छुपाने के लिए इसकी माँ को पागल करार दे रहा है। मैंने इसका इलाज करवाया, वो काफ़ी बेहतर हो चुकी थी जब तुम पैदा हुए। हमारी खुशी की कोई इंतहा न रही थी। हम दोनों तुम्हें पाकर बहुत खुश थे। हमारी ज़िंदगी जन्नत हो गई थी, लेकिन न जाने किस तरह से इसके दिमाग में शक का हनास भर गया। वो मुझसे लड़ने लगी, आए दिन हमारी लड़ाइयाँ होने लगी, और इन सब लड़ाइयों में खुद को नुकसान पहुँचाती थी। कभी अपने आप को कमरे में बंद कर लेती, 2-3 दिन तक कमरा नहीं खोलती थी। कभी खुद को फांसी लगाने की कोशिश करती, कभी खुद को जलाने की कोशिश करती, कभी कभी तो अपने हाथ पर चाकू से कांटा लगा देती। इसे फिर से दौरे पड़ने लगे थे। मैं काफ़ी परेशान हो गया था, मैं कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने फिर इसका इलाज करवाना शुरू कर दिया। इस दौरान मुझे अपने ऑफिस में 15 सेक्रेटरीज चेंज करनी पड़ी, क्योंकि वो ऑफिस आकर इन्हें बेइज्जत किया करती थी। ऑफिस में मेरा किरदार मशकूक होने लगा। इसकी हरकतों की वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता था, जिसकी वजह से कभी कभार इस पर हाथ भी उठा लेता, जिसके बाद वो तुम्हें अपने सीने से लगाकर रोते हुए ये कहती कि मैं इसके साथ बेवफाई कर रहा हूँ, इसे धोखा दे रहा हूँ। तुम 7 साल के थे जब हमें पता चला कि वो दोबारा माँ बनने वाली है। मुझे लगा कि हो सकता है इसके बाद वो ठीक हो जाए, लेकिन नहीं। उस दौरान मेरे ऑफिस में नरजस काम कर रही थी। नरजस एक बहुत चालाक औरत थी, और मैं नहीं चाहता था कि जुलेखा और नरजस का कभी आमना सामना हो। जुलेखा ऑफिस आती तो मैं नरजस को या तो छुट्टी पर भेज देता या किसी काम पर लगा देता, लेकिन एक दिन नरजस को देखकर वो फिर से पुरानी हरकतें करने लगी। इस रात वो अपने आप को मारने की कोशिश कर रही थी। मैं सिर्फ इसकी जान बचाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो चाकू इसकी जान ले लेगा। मैं नहीं जानता था तुमने क्या देखा, लेकिन इतना जानता हूँ कि इसके बाद मैं तुम्हारी नज़रों में गुनहगार हो गया। बहुत अच्छी कहानी सुनाई आपने, मगर आप अपने अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि सारी कहानी में अपनी और नरजस की शादी का पॉइंट तो भूल ही गए। अपनी मेरी माँ के कुल पूरे होने से पहले किसी दूसरी औरत से शादी कर ली। वो इसकी सारी बातों को झूठा करार देते हुए बोला तो हैदर शाह ने हाँ में सर हिलाया। तुम्हारी माँ के मौत के बाद नरजस बदनाम हो गई थी। हर कोई इस पर सवाल उठाने लगा था। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं रह सकती थी कि हमारी लड़ाई नरजस की वजह से हुई थी। इसके घर पर पत्थर बरसाए जा रहे थे, इसे गंदी औरत कहकर पुकारा जा रहा था, उठते बैठते से तंग किया जा रहा था। मैं इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर नहीं, बल्कि इसकी इज्जत बचाने की हाथ इसका हाथ थामने पर मजबूर हुआ था। इस इज्जत की चादर थमाने के लिए मैंने तुम्हारी माँ के कुल पूरे होने का इंतजार नहीं किया था। तुमने गलत देखा था, तो आप तुम मुझ पर यकीन करो या ना करो, लेकिन हकीकत यही है। मैं इस दिन गलत नहीं था, लेकिन आज गलत हूँ, बल्कि बहुत गलत था। मैं अपने ही खून को अपने हाथों से खत्म करने जा रहा था। महराज की बातों में आ गया था। मुझे लगा कि सारी दौलत तुम्हारे नाम हो जाएगी, तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा, जिस पर आलम कब्जा जमा रहा है, और रोहान भी इसका हिस्सेदार बन चुका है। मैं सिर्फ तुम्हें कामयाब देखना चाहता था, लेकिन मैं गलत था। मैं बहुत गलत था। आलम, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मैंने बहुत बुरा किया आलम। मैं माफ़ी के काबिल हरगिज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम पुलिस को फ़ोन करो, मैं अपना जुर्म कबूल करूँगा। मैंने तुम्हें यहाँ पहुँचा दिया मौत के मुँह तक। इस दिन मुझे लगा कि मैं फंस जाऊँगा, इसलिए बौखलाहट में तुम पर गोली चलाई। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है चाचू, आप कभी भी गलत नहीं थे, ना आज ना 20 साल पहले। और महराज बहुत जल्द अपने अंजाम तक पहुँचेगा। वो इनका हाथ थामते हुए बोला तो आप गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया था। आप बेफिक्र हो जाएं चाचू, हकीकत इसके सामने है, यकीन भी कर लेगा। लेकिन अपनी माँ को गलत समझकर आपको ठीक कहना फिलहाल इसकी आना इसे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। आप इसे थोड़ा वक्त दें, वो जल्द ही अपने आप समझ जाएगा। नैन ये बात कमरे से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, वो हैदर शाह को समझाते हुए दानिन से कहने लगा, जिस पर दानिन ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। वैसे आपके बेटे को मनाने का एक ज़बरदस्त आइडिया है मेरे पास। वो इसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला तो एक आस से इसकी जानब देखने लगे थे। अपने बेटे के लिए इसकी मनपसंद लड़की का रिश्ता ले जाएं, और इसकी मनचाही बचपन की मनकुहा को दुल्हन के रूप में पूरी इज्जत से अपनी हवेली ले आएं।
ہوش संभालने से पहले और बाद में पहली और आखिरी ख्वाहिश है तुराब हैदर शाह की। स्नेहा वासफ शाह। मैं जानता हूँ आप पाकिज़ा बेगम के सामने कभी झुकना नहीं चाहते, लेकिन अपने बेटे के लिए सर झुका लीजिए। और कुछ ना हो, लेकिन इससे बहुत कुछ ठीक हो जाएगा, ये मेरा दावा है। वो यकीन से कह रहा था, जबकि हैदर शाह अपने बेटे की खुशी के लिए पाकिज़ा के सामने झुकने के लिए भी तैयार थे। मैं तुम्हें समझाया था स्वतंत्र, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब अंजाम के लिए तैयार रहना। वो बेहद गुस्से से बोली थी। बरेरा बेगम, मैं बहुत कोशिश की इनको रोकने की, लेकिन वो नहीं माने। प्लीज़ आप कुछ भी मत कीजिएगा, मैं आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होने दूंगी। वो बुरी तरह से रो रही थी। नहीं, अब तुम्हें हिसाब झुकाना होगा, अब कोई माफ़ी नहीं, अब सज़ा मिलेगी तुम्हें। अगर तुम ज़ियार की ज़िंदगी चाहती हो तो खामोशी से मेरी और ज़ियार की ज़िंदगी से निकल जाओ, यही तुम्हारी सज़ा है। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है बरेरा, मैं इनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो इसे समझाने की कोशिश कर रही थी। ये सब कुछ मैं सुनना नहीं चाहती स्वतंत्र, ये तुम्हारा मसला है। अगर तुम ज़ियार की ज़िंदगी चाहती हो तो तुम्हें ज़ियार को छोड़ना होगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। खामोशी से ज़ियार की ज़िंदगी से निकल जाओ, इसके अलावा मैं तुमसे और कुछ भी नहीं मांगूंगी। फ़ोन बंद हो चुका था, जबकि पास से वहीं बैठी फूट फूट कर रो रही थी, जबकि हादी दरवाजे पर रुका हैरानगी से देख रहा था। ऐसे कैसे अपने कमरे में चली जाओ, ऐसे कैसे अपने कमरे में चली जाऊं मैं? स्नेहा, तुम्हें बुखार है और मुझे लगता है कि अगर तुम अकेले में कमरे में रही तो तुम्हारी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। लाली इसके बेड पर साथ लेटते हुए बोली थी। नहीं जानू, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ आराम से जाकर रेस्ट करो। और वैसे भी मुझे हाथ पैर रखने की आदत है और तुम्हें मेरी हरकत पसंद नहीं है, तुम डिस्टर्ब होगी। वो सूसू करती हुई बोली। इसे आज दोपहर से ही जुकाम बुखार की शिकायत हो रही थी। अरे छोड़ो यार, तुम कम हाथ पैर रखती हो, तुम्हारे अदा ने मुझे अपना शानदार बिस्तर ही समझ कर रखा है। ऐसे तकिए की तरह बोझ को सोते हैं कि वो बोलते बोलते अचानक रुक कर स्नेहा के एक्सप्रेशन देखने लगी, जो इसकी पूरी बात सुनने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नजर आ रही थी। बेशरम लड़की कवारी लड़कियों को जेब नहीं देता ऐसी बातें सुनना। कान बंद करो अपने, वो शर्म दिलाने वाले अंदाज में बोली थी। हाँ तो क्या शादीशुदा लड़कियों को जेब देता है कि वो अपनी कवारी बहन के सामने इस तरह से मुंह खोल कर अपने रोमांस की दास्तानें सुनाए? इसके डांटने पर वो मुंह फैलाकर बोली थी। जिसे तुम रोमांस कह रही हो इसे मैं जुल्म की दास्तान कहती हूँ। वो इसे घूरते हुए बोली, जिस पर वो हंसती और फिर हंसती चली गई। बस ये ड्रामे ना किसी और के सामने करो, मुझे पता है तुम कितने पानी में हो। मेरे अदा की मूछ तक तो बर्दाश्त नहीं होती तुमसे, और खुद पर जुल्म की दास्तान सुनाने वाली। वो आंखें घुमाकर बोली थी। नहीं, मूछ का वो इकलौता बाल जो इनकी मूछ में बहुत बुरा लगता था, इसे अलग कर दिया था। नहीं, मूछ का वो इकलौता भाल जो मूछ में बहुत बुरा लग रहा था, इसे अलग खड़ा था जैसे नाराज़ हो, इसलिए मैंने इसे जड़ से उखाड़ दिया। और तुम्हें नहीं पता इसके बाद मुझगरी पर क्या क्या जुल्म हुए हैं। वो शेर की शिद्दत याद करते हुए लाल होने लगी थी। मेरे पास बहुत वक्त है, तुम आराम से सुनाओ। आराम से सुनाओ सब। वो एक बार फिर से एक्साइटेड हो गई थी। थप्पड़ खाने का वक्त है, वो गुस्से से घूरते हुए बोली तो स्नेहा ने मुंह बनाया था। हाँ पता है तुम और कुछ खिला भी नहीं सकती, उठो जाओ अपने कमरे में, मेरे बेचारे अदा तुम इंतजार कर रहे होंगे। वैसे भी तुम्हें यहाँ रहने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, बातें तो तुमने सारी रात वैसे भी अपने इनके ही बारे में करनी है। पता नहीं ज़ियारा को कैसे पता चल गया कि मुझे बुखार हो गया है। शाम हुई नहीं, मुझे वहाँ से यहाँ ले आए। पता नहीं इनको कुछ ही दिन में मेरे पेपर्स होने वाले हैं। वो तो शुक्र है खुदा का कि बीच में 2-3 छुट्टियाँ आ गई, पहले ही बहुत सारे लेक्चर्स मिस करके बैठी हूँ मैं। वो अभी बोल ही रही थी कि बाहर से शेर के पुकारने की आवाज़ आई। ये तुम्हारे अदा आज कहाँ से टपक पड़े? ये तो रात 1 बजे के बाद आने वाले थे, पहले फ़ोन करके बताया था मुझे। वो परेशानी से उठी। कभी खुशी भी हो जाया करो लाली, हो सकता है मेरे अदा सिर्फ तुम्हारे लिए आए हूँ। स्नेहा इसे घूर कर बोली तो वो शर्माने की भरपूर एक्टिंग करती कमरे से बाहर निकल गई थी। यकीनन अब इसका वापस आना मुमकिन नहीं था, इसलिए स्नेहा ने भी अपनी नाक रगड़ते हुए सोने की कोशिश की और बेड पर लेट गई।